عجیب کیفیت ہے. باہر کربلا ہے, اندر خیمے میں قیامت ہے, قیامت صغریٰ قائم ہے. اپنی عزیزوں کی لاشیں اٹھا اٹھا کر کے کمر نڈھال ہے, جسم نڈھال ہے, چہرے پہ افسردگی کے آثار ہے, زلفیں بکھری ہوئی ہے, داڑھی پر خون کے قطرے ہیں, بدن کپڑے خون سے لت پت ہے. ایسے عالم کے اندر کبھی میدان کرب و بلا کی طرف دیکھتے ہیں, کبھی خیمے کی طرف. مولا حسین نے ادھر بہن کو تسلی دینا شروع کیا, ادھر خیمے سے رونے کی آواز آئی. جب رونے کی طرف توجہ کی گئی تو رونے والا کوئی اور نہیں, مولا حسین کی سب سے چھوٹی بیٹی سیدہ سکینہ فاطمہ رو رہی تھی. مولا حسین نے توجہ دیا تو کیا منظر دیکھتے ہیں کہ چچا عباس کے پاس, چچا عباس کو اپنے پاس بٹھا کر کے سکینہ ہاتھ پکڑ کر کہتی ہے, چچا آپ نے اپنی بھتیجی کی کبھی کوئی بات نہیں ٹالی. وہ دیکھو نا اصغر پیاس کی وجہ سے کبھی بے ہوش ہوتا ہے, کبھی پیروں کو زمین پہ رگڑتا ہے, کبھی مٹھیاں باندھتا ہے, کبھی کھولتا ہے, کبھی پیروں کو سمیٹتا ہے, کبھی پھیلا دیتا ہے. میرا بھیا بے ہوش ہو جاتا ہے, میرے بھیا کا ہوش ختم ہو جاتا ہے. میرے چچا آپ ہمارے لیے پانی کا تھوڑا سا انتظام کر دیں. اگر اپنی سکینہ کو نہ پلا سکے تو کوئی بات نہیں, لیکن معصوم اصغر کے لیے تو انتظام کریں. اللہ اکبر. مولا عباس نے, غازی عباس نے جیسے ہی اپنی بھتیجی سکینہ کا یہ دکھڑا سنا, اللہ اکبر تیش میں آ گئے. اس لیے کہ حضرت عباس علمدار مولا علی کی اور بیویاں جو تھی ان میں سے ایک بیوی جناب سیدہ ام بنین کے بیٹے تھے, لیکن سیدہ فاطمہ کی اولاد کا اتنا احترام کرتے تھے کہ اللہ اکبر مولا حسین کی اولاد کے سامنے غلاموں کی طرح رہتے تھے. آپ نے سنا ہوگا کہ اللہ اکبر مولا عباس جس وقت علی اکبر کے ساتھ چلتے, حضرت علی اکبر ہم شبیہ رسول تھے, لیکن حضرت عباس کا حال یہ تھا, آپ کا جسم چوڑا تھا اور قد اتنا اونچا تھا کہ آپ اونٹ کی پیٹھ پر اپنا ہاتھ زمین پہ کھڑے ہو کر کے رکھ لیا کرتے تھے. اس قدر تناور آپ کا انداز تھا, اس قدر آپ کا جسم تھا, مضبوطی کا عالم یہ تھا. اس کی وجہ یہ تھی سیدہ فاطمہ نے وصیت کی تھی, اے علی میرے بعد جب آپ نکاح کرنا تو بہادر گھرانے کی عورت سے نکاح کرنا, کیونکہ بہادر ماں سے جب بہادر بیٹے پیدا ہوں گے تو وہ میدان کربلا میں میرے حسین کے کام آئیں گے. مولا علی نے حضرت ام بنین سے نکاح کیا. یہ بڑی بہادر خاندان کی خاتون تھی اور خود بھی بہادر تھی. اللہ نے بہادر بیٹوں میں ایک بیٹا عباس ایسا عطا کیا. حضرت عباس کی طاقت کا عالم یہ تھا, اگر وہ کسی انسان کی زلفیں ہوتی تو اس کے بال پکڑ کر کے جو ہے اپنے دانتوں میں اس کو اٹھا لیا کرتے تھے. یہ کوئی قصے کہانی کی بات نہیں ہے, یہ اسلامی تاریخ کا ایک باب ہے, اور ہمارے لیے تو حیرت بھی نہیں ہے, ہمارے لیے تو تعجب بھی نہیں ہے. اس لیے کہ ہم تو یہ کہتے ہیں علی کا گھر بھی کیا گھر ہے کہ اس گھر کا ہر ایک بچہ جہاں پیدا ہوا شیر خدا معلوم ہوتا ہے. ارے جب آج تک کے جو ہے علی کے خون کی تاثیر یہ ہے تو وہ تو علی کی حقیقی اولاد ہے. علی فاتح خیبر ہے, کبھی زنجیر ہلتی ہے, کبھی در کانپ جاتا ہے. علی کا نام سن کر اب بھی خیبر کانپ جاتا ہے. قد اتنا اونچا تھا کہ بال پکڑ کر دانتوں سے انسانوں کو اٹھانا چاہے تو اٹھا لے, اونٹ کی پیٹھ پر زمین پہ کھڑے ہو کے ہاتھ رکھ لے. لیکن جس وقت حضرت عباس علمدار حضرت علی اکبر کے ساتھ مدینہ منورہ کی سرزمین پر چلتے تو اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لیتے اور رکوع کی حالت میں جھک جھک کر کے چلتے. کسی نے کہا عباس یہ تیرا بھتیجا ہے علی اکبر, اور جب تم ان کے ساتھ چلتے ہو تو جھک کر کے چلتے ہو. تو مولا عباس نے کہا تم دیکھتے نہیں یہ فاطمہ کا پوتا ہے اور ہم شبیہ رسول ہے, اگر میں اٹھ کر کے چلوں گا تو میرا سایہ تصویر رسول پہ نہ پڑ جائے, اس لیے میں جھک کر کے چلتا ہوں تاکہ تصویر رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے, ہم شبیہ رسول کی بے ادبی نہ ہو جائے. قدر والے جانتے ہیں قدر شان اہل بیت. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں, تو مولا عباس کو خاندان حسینی سے بڑی محبت تھی. اسی لیے تو مورخین نے یہاں تک بھی لکھا ہے کہ آپ امام علی مقام کے سوتیلے بھائی ہونے کے باوجود آپ نے پوری زندگی مولا حسین کو بھائی نہیں کہا, آپ نے ہمیشہ آقا مولا کہہ کر کے پکارا. مولا عباس جو ہے غازی عباس جب سکینہ کی آہیں سنتے ہیں, اللہ اکبر, جس کو اپنے بھائیوں سے زیادہ حقیقی بھائیوں سے زیادہ مولا حسین سے پیار تھا, مولا حسین کی آل سے پیار تھا, آپ نے مشکیزہ کندھے پہ ڈالا, کہا سکینہ آج بھی تیرا چچا عباس جب تیری کوئی بات زندگی میں نہ کٹی تو آج بھی تیرا چچا عباس تیری بات کٹنے نہیں دے گا. اور اس کے بعد مولا عباس جو ہے اللہ اکبر گھوڑے پر سوار ہوتے ہیں اور علی کا لاڈلا علی کا شیر گھوڑے پر بیٹھ کر کے جب جیسے ہی آگے بڑھنا چاہتا ہے مولا حسین غازی عباس کی لگام روک لیتے ہیں. عباس میرے بھائی کہاں جا رہے ہو, کہاں کا ارادہ ہے؟ عرض کیا آقا سکینہ نے پانی کی فریاد کی ہے, میں اپنی بھتیجی کے لیے پانی لانا چاہتا ہوں. فرمایا نہیں میرے بھائی عباس, نہیں تو نہیں جائے گا, اس لیے کہ تو میرے لشکر کا غازی ہے, تیرے رہنے سے مجھے ہمت اور حوصلہ ہے, کو جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. غازی عباس نے کہا آقا حسین میں سب کچھ برداشت کر سکتا ہوں, اپنی بھتیجی کی فریاد کو ٹال نہیں سکتا. آپ مجھ سے امتحان نہ لے میرے آقا, میری شہزادی کے شہزادے امتحان نہ لے, میری آقا زادی کے شہزادے امتحان نہ لے, مجھے جانے دے. اس کے بعد مولا حسین نے جو ہے لگام گھوڑے کی چھوڑی ہے اور عباس نے ایڑ لگائی ہے. اللہ اکبر. غازی عباس جب چلے ہیں اللہ اکبر, وہاں فرات کے کنارے پر پہلے دن تو 500 کا پہرا تھا, لیکن جب جنگ شروع ہو گئی تو تقریباً 2000 سپاہ کو وہاں پر کھڑا کر دیا گیا تھا. غازی عباس کو لوگوں نے میدان میں آتا دیکھا, لیکن میدان کی طرف سے عباس جیسے ہی فرات کی طرف بڑھے تو اس طرف لوگوں کی آنکھیں جو ہے وہ متوجہ ہو گئی کہ یہ کدھر جا رہے ہیں. جیسے ہی غازی عباس
फुरात की तरफ बढ़े तो उनसे मुजाहिमत की गई, यानी उन्हें रोकने की कोशिश की गई। मशकीज़ा देखकर यजीदी बेचैन हो गए कि अब क्या होगा, लेकिन तारीख में आता है गाजी अब्बास ने जैसे उनसे मुजाहिमत करने की कोशिश की गई, एक वार के अंदर 80 लोगों का कत्ल किया है, 80 को जहन्नम में पहुंचाया है। अब्बास की ताकत और कुव्वत का आलम ये था, गोया के हैदरी कचार के शेर जो है अपनी बहादुरी के जौहर भी दिखा रहे थे। 3 दिन के प्यासे हैं और ये हाल है, अगर प्यासे ना होते तो यजीदियों के छिक्के छुड़ा देते, या फिर अगर प्यास के बावजूद भी वादा वफा करना ना होता और जाने बचाने पर आते तो अल्लाह अकबर अपनी तलवारों के इशारे से जमीन पलट देते। लेकिन वहां तो वादा निभाना था, वहां तो वादा वफा करना था। गाजी अब्बास उनसे लड़ते लड़ते जब अपने घोड़े को लेकर फुरात के अंदर पहुंचे, यानी घोड़े के 2 पैर फुरात के अंदर थे, दरियाए फुरात के अंदर, और 2 पैर बाहर थे, आपने जैसे ही घोड़े को कहा जरा तू तो पानी पी ले। अल्लाह अकबर, ये वो रिवायतें हैं जो मोहताज मुअर्रिखीन की लिखी हुई है। और लेकिन एक बात याद रखें, हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है, सर सुबह रोजा झुका फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया फिर तुझको क्या, दिल ता साजिद यजीदिया फिर तुझको क्या। अल्लाह अकबर, मौला गाजी अब्बास ने जैसे घोड़े को कहा कि तू पानी पी, उधर घोड़े को कहते हैं और फुरात के किनारे पर पैर डाल करके खड़े हो जाते हैं। चुल्लू में पानी लिया, सोचा पहले मैं पी लूं ताकि मशकीज़े का पानी वहां खाली ना हो, उतना पानी बचेगा तो और काम आएगा। लेकिन जैसे ही पानी चुल्लू में लिया, सकीना की सूरत याद आई, मासूम असगर की प्यास याद आई, पानी को छोड़ दिया और कहा कि मेरे भतीजे और भतीजी प्यासी हो। और अब्बास पी ले पानी, पानी छोड़ा। घोड़े को कहा तू क्यों नहीं पीता। घोड़ा गर्दन की झुरझुरी देता है और गोया के ऐलान करता है, अब्बास घोड़ा हूँ, जानवर हूँ, लेकिन मेरे दिल में अहले बैत की मोहब्बत है, नबी की आल प्यासी है तो हम क्या पानी पिए। अल्लाह अकबर, मौला गाजी अब्बास ने मशकीज़ा भरा, पीठ पे डाला और पलटे। लेकिन उन नामर्दों में हिम्मत न थी कि अब्बास के साथ मुकाबला करते। एक बार में 80 को जहन्नम रसीद करते जब देखा तो हर एक को जान प्यारी होती है, मुजाहिमत न की, ये पीठ पर मशकीज़ा डाल करके चले। शिमर लईन शकी इब्न साद की आवाज़ आई, खबरदार अब्बास को चारों तरफ से घेर लिया जाए, अगर अब्बास ये पानी लेकर खेमे आले रसूल में पहुंच गए तो तुम में से कोई एक भी बचकर नहीं जाएगा, तुम्हारी औरतें बेवा होगी, तुम्हारे बच्चे यतीम होंगे। जैसे ये आवाज़ पहुंची, चारों तरफ से अब्बास को घेर लिया गया। हजरत अब्बास जंग करते रहे और यूं लगता था जैसे खैबर की तारीख दोहराई जा रही है। एक तरफ हाथ चलता है तो गाजर मूलियों की तरह यजीदियों के सर कट कट के गिरते हैं, लेकिन एक बदबख्त ने पीछे से आकर उस नामर्द ने जो है वो हजरत अब्बास के दाएं हाथ पे वार किया। अल्लाह अकबर, अब्बास का एक बाजू कट करके जमीन पर गिरा। हजरत अब्बास ने दूसरे हाथ में जो है वो तलवार थामी और तलवार थाम करके जो पीठ पर मशकीज़ा था उसको आपने अपने जो है वो आगे की तरफ करके अपने दांतों में पकड़ा और दूसरे हाथ से आपने जंग करनी शुरू की। अब भी मुकाबला जारी था, अभी खैमे आले रसूल से कोई फासला ही मौजूद था, थोड़ा सा फासला कि अगर घोड़े को एड़ लगा दी जाए और 2-4 छलांग घोड़ा मार ले तो खैमे आले रसूल में पानी पहुंच जाएगा। अब्बास को हाथ कटने का गम न था, इस बात की खुशी थी कि बस चंद लम्हों के बाद मैं सकीना के मुंह में पानी के कतरे डालूंगा अब और असगर के मुंह में पानी के कतरे डालूंगा। एक मलऊन आवाज करबला की सरजमीन पर गूंजती है, लोगों अब्बास पानी लेकर के न जाए। दूसरा बाजू कटने के बाद भी अब्बास घोड़ा चला रहे थे, दांत में मशकीज़ा पकड़े हुए थे। एक पलीद बदबख्त ने ऐसा तीर चलाया कि जो मशकीज़े को पेवस्त होकर के हजरत अब्बास के सीने में जा पड़ा और वो पानी जमीन के ऊपर आ गया। अब्बास फूट फूट करके रोने लगे, जान जाने का कोई गम न था, लेकिन बात ये थी कि मैं सकीना और असगर की मुराद को पूरी न कर सका। अल्लाह अकबर, जैसे सीने में तीर आया अब्बास जमीन पर आए, आवाज लगाई, आका हुसैन, आका हुसैन अपने गुलाम की मदद कीजिए, अपने गुलाम की खबर लीजिए। मौला हुसैन ने जैसे ही आवाज़ सुनी दौड़ करके आए तो जनाब अब्बास को देखा कि आपके दोनों बाजू कटे हैं, खून निकल रहे हैं। एक तसव्वुर मैं आपको दिलाना चाहता हूँ, एक तसव्वुर, ताकि करबला की रंगीनी को, इस दास्तान की हकीकत को महसूस कर सको। अल्लाह अकबर, जब कोई बाइक से गिरता है, जब कोई बाइक से गिरता है तो वो कोशिश करता है कि मैं हाथ के बल गिरूं, कि मेरा हाथ टूट जाए, मेरा हाथ टूट जाए तो मेरा सीना महफूज रहे, मेरी पीठ महफूज रहे, मेरा सर महफूज रहे। और बाइक से गिरने वाला जब हाथ के बल गिरता है तो वो महफूज हो जाता है। अब्बास, तुम तो हाथ के बल कैसे गिर सकते थे, इसलिए कि तुम्हारे हाथ ही काट लिए गए थे। जब अब्बास घोड़े से जमीन पर आए होंगे, गोया के फातिमा ज़हरा की चीख निकल गई होगी, रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बेचैन हो गए होंगे, मौलाए कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा की रूह तड़प गई होगी। जैसे ही अब्बास का सर मौला हुसैन ने अपनी गोद में लिया और चेहरे पे हाथ फेरा, जुल्फों पे हाथ रखा, कहा अब्बास कैसे हो मेरे भाई, मेरी तमन्ना ये थी कि तू जिंदगी में एक बार मुझे भाई कहता। कहा नहीं मौला, तू तो मेरा आका है, नबी की बेटी का शहजादा है, मेरा आका है नहीं। और अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे, अब्बास ये कहकर मुस्कुराने लगे। हजरत मौला हुसैन ने कहा भाई अब्बास तुम मुस्कुराते हो। कहा हुसैन मेरे आका, मेरी आंखों के सामने अम्मी फातिमा का चेहरा नजर आता है, अली का चेहरा नजर आता है, नाना मुझे हौज़े कौसर पे दिख रहे हैं और उनके हाथ में ठंडे पानी का प्याला है। नाना कहते अब्बास देर न कर, जल्दी आ, इसलिए मुस्कुरा रहा हूँ, गोद हुसैन की है, बुलाना नाना का है। मौला हुसैन ने अब्बास की पेशानी पे हाथ रख के कहा अब्बास तुम मुझसे पहले जा रहे हो, नाना को जाकर के मेरा हाल सुनाना और कहना नाना
जिस हुसैन को आपने अपने कंधों पे बिठाया था, वो हुसैन जान तो दे रहा है लेकिन ईमान का सौदा नहीं कर रहा है। जान तो दे रहा है लेकिन अकीदे का सौदा नहीं कर रहा है। अभी ये बात दोनों भाइयों के बीच हो रही थी कि अब्बास ने आंखें बंद कर ली। मौला हुसैन ने अपने भाई गाजी अब्बास का लाशा उठाया और ये कहते हुए, हाय मेरी कमर टूट गई, हाय मेरी कमर टूट गई अब्बास, अब मुझे सब्र की तलकीन कौन करेगा, अब मुझे हौसला कौन देगा, मेरे आगे खड़े होकर के तीरों का मीना कौन रोकेगा। ये कहकर मौला हुसैन कटे हुए बाजू वाले अब्बास को लेकर खैमे की तरफ जाते हैं। औरतों की चीखें निकल गई, खैमे में क़यामत बपा हो गई। सकीना मासूम बच्ची कहती है, चचा आ गए, लेकिन अब्बास कोई जवाब नहीं देती। अब्बास का गिरेबान पकड़कर सकीना हिलाती है, चचा सकीना से कुछ बात तो करें, आपने जाते तो कहा था कि मैं पानी लाऊंगा, ले आए पानी। मौला हुसैन ने बेटी को सीने से लगा के कहा, बेटी जो दुनिया से चले जाते हैं फिर वो बातें नहीं किया करते, तेरा चचा अब्बास दुनिया से खोज कर ले आए, अब वो तुझसे कोई बात ना करेगा। तो सकीना ने मासूमियत से कहा, अब्बा बाबा क्या मेरा चचा मुझसे नाराज हो गया जो मुझसे बातें नहीं करेगा? कहा नहीं बेटी, वो नाराज नहीं हुआ है तुझसे, बल्कि तेरी खातिर उसने अपनी जान का सौदा किया है। अभी वो अब्बास की लाश रखी गई थी, घर की औरतों को तसल्ली ही दी जा रही थी कि मौला हुसैन ने मैदान करबला में जाने की तैयारी शुरू की। जवां साल बेटा मौला अली अकबर खड़े हो गए, नहीं बाबा, जब तक मैं हूं आप मैदान करबला में नहीं जाएंगे, आप मुझे इजाजत देंगे, मैं करबला के मैदान में जाऊंगा। मौला हुसैन ने पहली मर्तबा बेटे से जब यह गुफ्तगू सुनी कि मैं करबला के मैदान में जाऊंगा, आंखों के सामने अंधेरा सा छा गया, आंख में आंसू आ गए। तुम जाओगे अली अकबर, तुम जाओगे? हाँ बाबा, नहीं ये नहीं हो सकता, वो मेरे खून के प्यासे हैं, मैं तुम्हें जाने की इजाजत नहीं देता। जवान साल 18 साल के बेटे अली अकबर ने अपने बाबा के दोनों हाथ पकड़े, बाबा मुझे कोई एक दिन ऐसा बता दो जिस दिन आपके बेटे अली अकबर ने आपसे कोई इल्तिजा की हो और आपने उसको ना कहा हो, आपने कभी मेरी बात को रद्द न किया, मेरी हट आपने कभी न टाली, मेरी मुराद आपने कभी ना नहीं किया, मुझे नामुराद नहीं किया। बाबा अब तेरे बेटे की एक ही ख्वाहिश है कि मैं भी करबला के मैदान में जाकर अपने बाबा पर अपनी जान को निसार कर दूं। हम शबीर रसूल को देखा बेटा, अहले मदीना तो नाना को जब देखने के मुतमन्नी होते थे तो कभी तेरी दादी, कभी तेरे बाबा, तेरे ताया हसन को या फातिमा को देखकर तमन्ना पूरी करते थे, और जब वो कूच कर गए तो अब अहले मदीना और रसूलुल्लाह के घर के लोग अब तुझे देख करके अपनी तमन्नाएं पूरी करते हैं। बेटा तू तस्वीर रसूल है, तू तस्वीर मुस्तफा है, तू आका की तस्वीर है, बेटे तू करबला में नहीं जाएगा। अली अकबर अड़ गए, नहीं बाबा मुझे करबला में जाने दे, वरना मैं क़यामत के दिन नाना को मुंह क्या दिखाऊंगा। ऐ मुसलमानों जरा गौर करो, तसव्वुर करो, अपना बेटा अगर स्कूल से लेट आता है, माँ की धड़कनें तेज होती है, मेरा बेटा कहाँ होगा। बेटा बाइक लेकर के जाता है, दिल में अजीब अजीब किस्म के वसवसात आते, पता नहीं तेज चलाएगा कि धीरे चलाएगा कि क्या होगा। लेकिन हुसैन तेरे सब्र को सलाम, 18 साल का जवान बेटा सामने खड़ा है, मैदान में जाने की इजाजत चाहता है। मौला हुसैन मना करते हैं, जिद करता है बेटा। मौला हुसैन अपने हाथ से अपने खूबसूरत बेटे के सर पे अमामा बांधते हैं। ज़ैनब लिपट गई, ये नहीं हो सकता। उम्मे रबाब हाथ पकड़ लिया, ये नहीं हो सकता। लैला ने कहा ये नहीं हो सकता। शहरबानों ने रास्ता रोक लिया, ये नहीं हो सकता। मौला हुसैन घर की खवातीन को संभाला देते हैं, कहते बीबियो अब इसका आखिरी सलाम कबूल करो, अब इसकी सूरत तुमने देखना नसीब न होगी। मौला हुसैन अपने हाथों से अपने 18 साल जवान बेटे को घोड़े पर बिठाते हैं, लगाम पकड़ते हैं, बेटा जा अली के खानदान की रीत निभा। अली अकबर जैसे 2 कदम घोड़े को आगे बढ़ाते हैं, हुसैन कहते बेटा जरा पलटना, बेटे जरा पलटना, तुझे देख करके नबी की सूरत देख लूं, नबी की हुस्न की यादें ताजा कर लूं। अली अकबर जिसे दूल्हा बनना था आज वो शहादत का दूल्हा बन करके जा रहा है। ऐ कौमे मुस्लिम, ए रसूल का कलमा पढ़ने वालों, हुसैन तुम्हें ज़हन दे रहे हैं कि दीन कितना कीमती है, दीन की अहमियत कितनी है। दीनदार बनो खुदारा, दीन को पीठ के पीछे न डालो, दीन को सीने से लगाओ, रस्मी मुसलमान न बनो, यजीद की तरह कलमा पढ़ने वाले न बनो, हुसैन की तरह कलमा पढ़ने वाले बनो। दीन के लिए जो कुर्बान करना पड़े कर दो, घर लुटाना पड़े लुटा दो, माल लुटाना पड़े लुटा दो, आबरू लुटानी पड़े लुटा दो, लेकिन अल्लाह के दीन को सीने से लगाओ। मुसलमानों का हाल ये है कि वो बैठकर पानी पीने में भी शर्माते हैं, लोग क्या कहेंगे, अरे लोग क्या कहेंगे ये क्यों देखते हो, शफाअत करने वाले मुस्तफा क्या कहेंगे ये देखा
देखा करो, अल्लाह की बारगाह में जवाब देना, उसका फैसला क्या होगा ये देखा करो। मौला हुसैन कहते हैं अली अकबर मेरे बेटे जरा पलटना। तो अली अकबर पलटते हैं। हुसैन अपने अमामे के शमले से कभी कभी अपनी आस्तीन से आंसू खुश्क करते हैं, लेकिन रोते भी हैं तो चुपके चुपके रोते हैं, इसलिए कि सबको चुप कराने वाला अगर बीवियों के सामने रोएगा तो फिर बीवियों को चुप कौन कराएगा? सबको तसल्ली देने वाला रोएगा तो फिर तसल्ली कौन देगा? हुसैन चुपके चुपके रोते हैं, कभी आंसू दाढ़ी के अंदर जाते हैं, कभी आस्तीन में खुश्क होते हैं। अजीब इम्तिहान है अल्लाह के दीन के लिए, खुदा के दीन के लिए अजीब इम्तिहान है। मौला अली अकबर मैदान करबला में आए, करबला का नक्शा बदल गया, यूं लगता था जैसे करबला का जर्रा जर्रा अली अकबर के हुस्न से चमक उठा हो। अली अकबर के हुस्न ने करबला की धरती पर चार चांद लगा दिए हो। जहां वहशत टपक रही थी, जहां दहशत टपक रही थी, वहां पर अल्लाह अकबर अली अकबर के नूर ने एक अजीब सा मुनव्वर समा कर दिया। यजीदियों ने तलवारें जमीन पे रखी, नेज़े जमीन पे रख दिए और कहा शिमर हद हो गई है, अरे हम तो लोगों से जंग कर सकते हैं, हुसैन से कर सकते हैं, अब हम अपने नबी से भी जंग करेंगे। शिमर बदबख्त ने कहा तुम्हारी निगाहें धोखा खा रही है, ये नबी नहीं है, आले नबी है, ये अली अकबर है, हुसैन इब्ने अली है, इसलिए इससे न डरो। और उसके बाद जब सामने जाकर मौला अली अकबर खड़े हुए हैं तो आपने कहा मैं अली हूं हुसैन का बेटा, अली का पोता, अली इब्ने हुसैन इब्ने अली हूं। और आपने जो है वो दो मिसरे पढ़े और उसके बाद कहते हैं है कोई मेरे मुकाबले का? जब आपने मुकाबिल तलब किया किसी में हिम्मत न थी और ना मुराद ना मर्दों में ताकत न थी कि उस शहजादे रसूल का मुकाबला करता, लेकिन आप खुद ही घुस पड़े और आपने मैमना और मैसरा पर इस तरीके से हमले किए कि गाजर मूली की तरह यजीदियों को काटा। और उसके बाद जब लड़ते लड़ते थक गए तो फिर एक मर्तबा बाबा का जुमला याद आया, अली अकबर जरा पलटना अली अकबर। ये याद आया तो सोचा कि चलो एक बार फिर बाबा से मिलते हैं। वापस लौटे, हुसैन खैमे के दरवाजे पर खड़े थे, बेटे को पलटता देखा, अजीब सी खुशी भी हुई। आए, क्या बात है बेटा? बाबा बहुत प्यास लगी है। चिलचिलाती धूप में अगर कोई 4 कदम दौड़ लेता है तो उसको कितनी प्यास लगती है। वहां 3 दिन से पानी नहीं है, सूअर पानी में लौट रहे हैं, गधे और कुत्ते पानी में लौट रहे हैं, सबको पानी पीने की इजाजत है, आले नबी को इजाजत नहीं, साकिए कौसर की औलाद को पानी की इजाजत नहीं। कैसी नैरंगी ये जमाना है, कैसे हालात हैं। अल्लाह अकबर। जब मौला अली अकबर ने कहा बाबा अगर मुझे चंद कतरे पानी पिला दें तो मैं उनकी छिक्के छुड़ा दूं। 2 रिवायतें मिलती है, मौला हुसैन ने अपनी अंगूठी निकाल के कहा इसे चूस ले, और दूसरी रिवायत जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है जिसको मैं अक्सर बयान करता हूँ, कहा बेटे जब हम लोग सफर में होते और पानी नहीं मिलता और रोते थे तो नाना अपनी जबान चुसाते थे, मेरे बेटे आ और मेरी जबान चूस ले। अली अकबर के मुंह में हुसैन ने अपनी जबान दी। 3 दिन के प्यासे हुसैन की सूखी जबान जो सूख करके काटा हो चुकी थी, जैसे ही अली अकबर के मुंह में आई, अली अकबर के जख्म हरे हो गए, आंख में आंसू आ गए। मुझसे ज्यादा सख्ती तो मेरे 56 साल बाप की जबान में है, लेकिन बाप की जबान चूसी और उसके बाद फिर कहा अब्बा आखिरी सलाम ले अपने अली अकबर का। मौला हुसैन ने कहा बेटे जाओ, जाकर अपनी जान कुर्बान करके अल्लाह के दीन को बचा लो। मौला अली अकबर पलटे, बीबियां हैरतो यास का, हैरतो इस्तिजाब का मुजस्समा बन गई, किसी में ताकत और सकत नहीं है कलाम की। अली अकबर पलटे हैं, दुश्मन मुनज़्ज़म हो चुका था, कहते हैं चारों तरफ से घेर लो, चारों तरफ से घेर लिए गए, इतने जख्म आए कि कपड़े लहू लहान हो गए, सर फट गया। एक पलीद ने वलद शैतान ने एक ऐसा नेजा सीने में मारा कि तस्वीर मुस्तफ़ा घोड़े से जमीन पर आ गई। जैसे घोड़े से जमीन पर आए, आवाज लगाई बाबा अपने अली अकबर की खबर लेना। हुसैन दौड़ते हुए आए और आने के बाद देखा कि तस्वीर मुस्तफ़ा खाको खून में नहा गई है। यूं लगता था कि जैसे चांद के इर्द गिर्द लाला रुखों ने अपनी पंखड़ियां बिखेर दी है, गुलाब की पंखड़ियां बिखर गई है, ऐसा लगता था। मौला हुसैन ने अपने बेटे को उस गोद में सर रखा और उसके बाद गर्द गुबार साफ किया। बेटे कैसे हो? कहते बाबा बड़ी तकलीफ है, आपके अली को बड़ी तकलीफ है बाबा, ये जो मेरे सीने में नेज़ा पेवस्त हुआ है ना बाबा, आप इसको निकाल दें। अगर आप इसको निकाल देंगे तो मैं आपको यकीन दिलाता हूँ मैं फिर जो है वो लड़ने की कुव्वत और ताकत रखता हूँ। हुसैन ने चिलचिलाती हुई धूप में करबला की रेत पर अपने 18 साल जवान बेटे का सर रखा और उसके बाद 56 साल अपने बुढ़ापे की ताकत को हुसैन ने इकट्ठा किया। और इकट्ठा करने के बाद जैसे ही वो नेज़ा आपने बेटे के सीने से खींचा, नेज़े की अन्नी पर मौला अली अकबर का दिल निकल आता है। जब दिल देखा है अली अकबर का नेज़े की अन्नी पर, हुसैन के होश उड़ गए। वो हुसैन जिसने बचपन से गम झेले थे, वो हुसैन जो सब्र का पहाड़ था, पहाड़ जिसमें कोई हिमालय से ज्यादा सब्र था, जिसमें कोई हिमालय से ज्यादा ताकत थी। सब्र अय्यूब अगर देखना है हुसैन में देखो, सब्र इलियास देखना है हुसैन में देखो, सब्र मुस्तफा के जलवे देखना है हुसैन में देखो। 56 साल की उम्र तक आते हुए मेरे मौला हुसैन के सर के और दाढ़ी का एक बाल भी सफेद न हुआ था, लेकिन जवां साल बेटा, बाप आखिर बाप होता है, बाप के सीने में दिल होता। उस बाप के दिल से पूछो जिसके बेटे को डॉक्टर नो गारंटी कह देता है। लेकिन हुसैन मैं तुम्हें क्या नाम दूं, मैं तुम्हें किस नाम से याद करूं मेरे आका।
बेटे का सर, बेटे का दिल जब नेज़े की अन्नी पे देखा, मौला हुसैन आंखों के सामने अंधेरा, सर झुकरा गया, अजीब सी कैफियत हो गई। और उसके बाद आखिरी हिचकी अली अकबर ने ली। मौला हुसैन जब बेटे की लाश उठाए, अल्लामा इब्न असाकिर लिखते हैं कि हुसैन जब बेटे की लाश उठा करके ला रहे थे तो दाढ़ी के और सर के सारे बाल मौला हुसैन के उसी वक्त तो सफेद हो गए, उसी आन सफेद हो गए। इब्न असाकिर लिखते हैं ज़ैनब ने शहरबानों से कहा, हुसैन, शहरबानों देख मेरे भाई हुसैन बेटे का गम बर्दाश्त न कर सका और जवान बेटे की लाश ने उसको बूढ़ा कर दिया, जवान बेटे के गम ने उसको बूढ़ा कर दिया। खैमे आले रसूल में एक अजीब माहौल है, बीबियां बेहोश होकर जमीन पे गिर पड़ती है, अजीब हाल है। हुसैन बाहर देखे कि अंदर देखे, एक के बाद एक लाशें हैं, खैमा खाली हो गया है, अब कोई नहीं है खैमे में, बस एक नन्ना सा मासूम 6 महीने का अली असगर है और एक आबिदे बीमार है ज़ैनुल आबिदीन जिसे दुनिया कहती है। अल्लाह अकबर, कल तक के जिसका खैमा खचाखच भरा हुआ था, जवान जवान खूबसूरत बेटे जिनके खैमे की निज़ीनत बने हुए थे, आज वो खैमे खाली हो गए, उन खैमों में कुछ नहीं रहा। या तो रोती हुई बीबियां हैं, या तो बेहोश होती हुई बीबियां हैं, या तो बिस्तर पे पड़ा हुआ ज़ैनुल आबिदीन है। बाप को देखा, खड़े होने की कोशिश, बाबा मैं भी करबला में जाऊंगा। अली अकबर शहीद हो गया, कासिम भी, सब, मैं जाऊंगा, मुझे भी जाने दे। मौला हुसैन ने कहा, नहीं बेटा नहीं, अगर तुम भी करबला के मैदान में शहीद हो गए तो हुसैनी सैयदों का सिलसिला किससे चलेगा? मेरी आल हुसैनी सैयदों का सिलसिला तुमसे चलेगा बेटा, तुमने करबला के मैदान में नहीं जाना, नाना की रिवायतें, नाना का इल्म, मेरी जानशीनी सब तुम्हें निभाना है। बेटा तुम भी शहीद हो गए तो इन औरतों की रहनुमाई कौन करेगा? इनका महरम बनकर मदीने तक कौन जाएगा? मदीने मुनव्वरा जाकर नाना की कब्र पर दास्ताने गम कौन सुनाएगा? तुझे नहीं जाना है बेटा, तुम बीमार हो। मौला ज़ैनुल आबिदीन कहते हैं, बाबा नहीं, मैं लड़ सकता हूँ, देखे मैं लड़ सकता हूँ। बिस्तर से उठे, उठकर खड़े होने की कोशिश करते हैं कि जमीन पे गिर पड़े। आपने सहारा दिया, बिस्तर पे लिटाया, ज़ैनुल आबिदीन बेहोश हो गए। एक तरफ बीमार ज़ैनुल आबिदीन बेहोश पड़े, दूसरी तरफ सकीना बेहोश पड़ी है, तीसरी तरफ शहरबानो कहते हुसैन कभी मांगा तूने ना न किया। आज एक सवाल है, ये नन्हा सा मासूम बच्चा, इसकी माँ के सीने का दूध भी खुश्क हो चुका है, ले जाओ और इसे पानी पिला कर खिलाओ। वो हमें पानी नहीं देते ना, इस खौफ से कि हम पानी पिएंगे तो उनसे लड़ने की ताकत बढ़ जाएगी। बच्चे को तो पिला सकते हैं ना वो पानी, बच्चे को तो पानी देने में क्या हर्ज है, बच्चा उनसे लड़ेगा तो नहीं। मौला हुसैन ने कहा, नहीं मांगना मेरे घराने की रीत नहीं, हम तो देने वाले लोग हैं। शहरबानो चुप हुई। सैयदा ज़ैनब ने कहा, भैया तूने अपनी बहन की बात कभी न टाली, अम्मी फातिमा का वास्ता मेरे भाई, जाओ ना एक मर्तबा, माँ की खातिर बहन की बात मान लो ना, ले जाओ, चंद कतरे इस बच्चे को पिला देंगे तो इसे अच्छा। भैया इसका रोना नहीं देखा जाता। चूंकि मौला हुसैन को ख्वाब में हुजूर ने शोहदा की लिस्ट दी थी, एक फहरिस्त दी थी, उसमें हैरत अंगेज तौर पर मासूम असगर का नाम भी था। मौला हुसैन को हैरत थी कि हुजूर ने इसमें असगर का नाम भी लिखा है, असगर कैसे शहीद होगा, कैसे मारा जाएगा? लेकिन अब वो मंजर निगाहों के सामने था कि गैब दा नबी ने जो असगर का नाम शहीदों की फहरिस्त में लिखा है, अब शहादत के असबाब पैदा होते हैं। मौला हुसैन ने बेटे को हाथ में लिया, 6 महीने का बच्चा। 6 महीने का बच्चा क्या होता है? क्या होता है? 6 महीने के बच्चे को अगर मच्छर काट ले तो वो चीख चीख करके रोता है। 6 महीने के बच्चे को अगर माँ का मिर्च वाला हाथ लग जाए तो उसकी चीखें निकल पड़ती है। लेकिन ए नबी के घराने तुझ पे सलाम हो, ए नबी की अहले बैत तुझ पे सलाम हो। अल्लाह अकबर। मौला हुसैन हाथ में अपना बच्चा लेकर के चले। करबला के ऐन दोपहर का वक्त, चिलचिलाती धूप है। हुसैन अपने बच्चे के चेहरे पर आस्तीन का साया करते हैं, एक हाथ इस तरह एक हाथ इस तरह, नन्हे से बच्चे को लेकर बोझल कदमों से करबला की तरफ चल पड़ते हैं। यजीद जो ने आते देखा, बातें करने लगे, शायद हुसैन बैअत की नियत से आ रहा है, क्योंकि अब तक बच्चे कटे, भाई कटे, आवान और अंसार कटे, अब अपनी जान पे बनाई तो शायद हुसैन ने फैसला तब्दील कर लिया है, इसीलिए तो बोझल कदमों से आ रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, जैसे ही मौला हुसैन उनके करीब पहुंचे, जैसे करीब पहुंचना था, उन्होंने कहा हुसैन अगर पहले बैअत कर लेते तो ये हाल तो ना होता, ये अंजाम तो ना होता। मौला हुसैन ने कहा बैअत के लिए नहीं आया है हुसैन, इसलिए कि हुसैन का हाथ सिर्फ हुसैन का हाथ नहीं है, ये हाथ गोया के मुस्तफा जाने रहमत का हाथ है, ये हाथ गोया के यदुल्लाह है। अल्लाह अकबर, ये हाथ यजीद के हाथ में कैसे दिया जा सकता है? अल्लाह अल्लाह। मौला हुसैन ने कहा आना इसलिए है कि मेरी बहन ने मुझे मजबूर किया, माँ के वास्ते दिए, इसलिए मैं आया हूँ। ओ यजीदियो, अगर बिगाड़ा है तो तुम्हारा मैंने बिगाड़ा है कि मैं बैअत नहीं करता, मैंने तुम्हारी हाँ में ना की है, मैंने तुम्हारे खिलाफ एहतजाज किया है, मैंने तुम्हारी बदबख्तियों पर सरापा एहतजाज बुलंद किया है। लेकिन मेरे इस नन्हे से बच्चे ने क्या किया है? खुदारा इसे कुछ पानी पिला दो, कुछ कतरे इसे पानी के दे दो।
अगर तुमने पानी पिला दिया तो पानी पिलाने वालों मैं यूं ही नहीं जो छोड़ूंगा बल्कि मैं इसका बदला अता करूंगा। हाय हाय वाह रे असगर तेरी करामत आज भी दुनिया देख ले। अरे देखो आंखों से दिखा रहा है असगर, नाम असगर पर जब पानी बरस सकता है तो जाते असगर के लिए पानी क्यों नहीं आ सकता। किसी ने कहा कि अगर असगर जमीन पे एड़ी रगड़ते तो पूरा करबला पानी से मौजे मारने लगता। करबला पे पानी ठाटे मारता हुआ समंदर की शक्ल में नजर आता, लेकिन वहां तो पानी पीने नहीं गया था असगर, साकी कौसर के हाथ से जामे कौसर पीने गया। जिंदगी भर तक याद रखना इस महफिल को, और ये कबूलियत की महफिल है, ये कबूलियत की महफिल है। जब क़यामत में अल्लाह पूछेगा मेरे लिए क्या लाए हो तो बता देना 1400 हिजरी की आशूरा की शाम गरीबा का फकीर कादरी का वो प्रोग्राम तेरी बारगाह में असगर की शहादत के तौर पर लाए हैं। इंशाअल्लाह वो असगर मासूम का नाम लोगे और अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें निजात का परवाना अता कर। हाँ मौला अली असगर को देखो, ये बच्चा 6 महीने का मासूम बच्चा, इसे चंद कतरे पानी पिला दो, चंद कतरे, मैं बदला दूंगा तुम्हें, क़यामत में बदला दूंगा। उन्होंने कहा हुसैन अब तुम ऐसे ही एक के बाद एक बच्चों को लाओगे तो हम किसको किसको पानी देंगे। और एक पलीद खबीस ने तो यहां तक के कहा हुसैन तेरे बच्चे को पानी पिलाए, सांप का बच्चा भी सांप होता है। माअज़ल्लाह अस्तग़फिरुल्लाह, ये बदबख्त जो होते हैं ना उनकी जबानों को लगाम नहीं होती। सांप का बच्चा सांप होता है। और उसके बाद आंखों ही आंखों में इशारे करने लगे। हुरमला इब्न काहिल ये वो बदतरीन पलीद है कि इसने तीर जो है कम पर रखा। कौन सा तीर? अरब ने का एक कानून था, कुछ तीर इंसानों के लिए थे जो इंसानों पे चलाए जाते थे, लेकिन जो तीर इंसानों पे चलाए जाते थे वो घोड़ों पे नहीं चलाए जाते थे, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी मजबूत और मोटी होती है। तो घोड़ों के लिए अलग से तीर होते थे जो बड़े तेज और बहुत ज्यादा नकीले होते थे, क्योंकि घोड़ों की चमड़ी जो मोटी होती थी। अल्लाह अकबर, जो तीर घोड़ों पे चलता है वो तीर हुरमला इब्न काहिल ने मौला हुसैन के बेटे के हलक पर यह कहकर चलाया, हुसैन तुझे अपने बेटे की प्यास का बड़ा एहसास है, ले आज के बाद तेरा बेटा कभी पानी नहीं मांगेगा। जैसे ही हलक असगर पे तीर चला, असगर का हलक चीरता हुआ वो तीर मेरे इमाम के बाजू में पेवस्त हो गया। मौला हुसैन ने देखा, बच्चे पे नजर की, वो मासूम मासूम तिसलियों वाला बच्चा, वो 6 महीने का कमजोर सा बच्चा बाप की गोद में झुरझुरी लेने लगा। बाप ने अपने बेटे को गोद में झुरझुरी लेते देखा। हुसैन आजम की कैफियत बदल गई और हाथ से जैसे ही वो तीर आपने खींचा, ऐसी खून की फुहार निकली कि मौला हुसैन के हाथों में वो खून आ गया। दाढ़ी पर पड़ा, चेहरे पे पड़ा, आपने उसे चेहरे पे मला और जो खून बचा उसे जमीन पे फेंकना चाहते थे। आवाज आई, हुसैन जमीन पे न फेंक, क़यामत तक के दाना नहीं उगेगा। फिर सोचा आसमान पे उछाल दे, आसमान की तरफ। कहा हुसैन क़यामत तक के पानी नहीं बरसेगा। मौला हुसैन ने वो खून अपने चेहरे पे मल लिया और कहा, अल्लाह क़यामत के दिन हुसैन जब असगर के खून का मुद्दई बन करके आएगा तो तेरी बारगाह में इसी हालत में आएगा। और जब नन्ना सा लाशा लेकर हुसैन चले हैं तो आसमान की तरफ उस सब्र और रजा के पैकर ने अपने हाथों को उठा करके कहा, अल्लाह 19 साल के कासिम की कुर्बानी कबूल की है, 18 साल के अली अकबर की कुर्बानी कबूल की है, मेरे भाई अब्बास की कुर्बानी कबूल की है। मौला ये छोटी सी 6 महीने की मासूम कुर्बानी भी कबूल फरमा ले। खुदा जाने कि क्या निदाएं आ रही होगी, कैसी तसल्लियां दी जा रही होगी। अल्लाह अकबर, जरा आसमान के फरिश्ते भी आकर तो देखे क़यामत के दिन, करबला के दिन कि क्या हो रहा है। इन्नी आलमो माला तालमून के जलवे नजर आ रहे हैं। अल्लाह अकबर, वो काम हुसैन ने कर दिखाया जो फरिश्तों के बस का भी ना था। इसलिए कि 6 महीने के बच्चे को अल्लाह की राह में कुर्बान कर देना। बद्र वालों की कुर्बानी सराखों पर, ओहद वालों की कुर्बानी सराखों पर, खंदक वालों की कुर्बानी सराखों पर, लेकिन जवानों का मुकाबला जवानों से था। जो कोई नाबालिग होता अल्लाह के रसूल उसको मैदान जंग से वापस कर देते थे, लेकिन यहाँ तो 6 महीने का मासूम बच्चा भी हुसैन करबला में लाकर नाना के वादे को वफा कर रहे हैं। जिब्रील की चीखें निकल गई होगी, क्या हाल हुआ होगा, फरिश्तों की चीखें निकल गई होगी। नन्ना सा मासूम बच्चा, बल्कि ए जनाब इब्राहिम तुम पर दुरूद और सलाम हो, जरा आप भी आकर के तो देखें। रूह इब्राहिम भी करबला में हैरत से हुसैन का मुंह तक रही होगी कि हुसैन हमने तो सिर्फ छुरी रखी थी, बेटे की गर्दन पर और आंखों पे पट्टी बांध ली थी कि बेटे का तड़प हम देख न सकेंगे, बेटे का कर्ब देख न सकेंगे, लेकिन यहाँ तो इतने बेटे भतीजों का लाशा देख कर भी मासूम अली असगर को कुर्बान कर दिया है हुसैन ने। अल्लाह अकबर, ये वो कुर्बानी है जो कभी भुलाई नहीं जा सकती है। हुसैन जब वापस लौट रहे हैं खेमे की तरफ, बीबियां एक दूसरे से कहती, देखो अगर पहले ही लेकर के जाते तो काम और आसान हो जाता। उन्होंने पानी पिला दिया ना, इसलिए बच्चा तड़पता नजर नहीं आता। उन्होंने पानी पिला दिया ना, इसलिए बच्चा बिलखता नजर नहीं आता, बच्चा रोता नजर नहीं आता। जैसे ही मौला हुसैन करीब आए, ज़ैनब व शहरबानो कहते, हुसैन हम तो पहले ही कहना चाहते थे लेकिन ताखीर हुई, काश कि तुम पहले ले जाते तो बच्चा पहले पानी पी लेता। मौला हुसैन की आंख में आंसू थे, कहते हाँ हाँ मेरे बच्चे ने पानी तो पिया, लेकिन गैरतमंद अली के बेटे अली ने, अली के घर के शहजादे अली असगर ने यजीदियों के हाथों से पानी नहीं पिया, बल्कि साकिए कौसर के हाथों से पानी पिया।
میرے اندر طاقت نہیں ہے، بس ایک جذبہ ہے کہ وہ روایتیں اپنی نسل کے دلوں میں منتقل کر دوں تاکہ انہیں دنیا گمراہ نہ کر سکے. یہ مجبوری ہے، ورنہ کبھی میں اس عنوان پہ گفتگو نہ کروں. مجھ میں طاقت نہیں، میرے اندر ہمت نہیں. ادھر معصوم علی اصغر کا لاشا لا کے رکھا گیا. اب میرا مولا حسین میرے امام کی باری ہے. دل کے کانوں سے سنو، دل میں مرادیں لے لو، ایمان کی حفاظت کے لیے دعا کرو، مولا حسین کی خیرات لینے کے لیے دعا کرو. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ جب ایک مصنف کا قلم بھی جواب دے جاتا ہے، ایک مقرر کی زبان بھی جواب دے جاتی ہے. مولا حسین کی باری ہے کربلا میں جانے کی. ابھی اصغر کا لاشا لا کر کے رکھا گیا ہے. بیویاں لاشا اصغر اٹھا کر سینے سے لگا. زینب کی چادر زمین پہ گر گئی. شہربانو پھر بے ہوش ہو گئی. مولا حسین کیا کرے؟ ایسے میں خیمے کے پیچھے کی طرف سے ٹاپوں کی آواز آنے لگی. مولا حسین نے گھبرا کے دیکھا، پیچھے سے ٹاپوں کی آواز، دشمن تو ادھر ہے. جب ٹاپوں کی آواز آنے لگی تو آپ اس طرف متوجہ ہوئے تو دھول اڑ رہی تھی. دھول چھٹی تو دیکھا کہ کوئی ایک نیک آدمی گھوڑا دوڑا کے آ رہا ہے. گھوڑا پسینے پسینے ہے. اور اس کے بعد وہ وہاں کھڑا ہو گیا. تھر تھر کانپتا تھا مولا حسین کا وجود دیکھ. مولا حسین کو اس نے سلام کیا، پیر چومے، ہاتھ چومے. کہا آپ حسین ابن علی ہیں؟ ہاں. کیا بات ہے؟ اس سال میں حج کو گیا تھا. اس سال میں حج کو گیا. حج کے بعد روضہ رسول پہ گیا تو جب میں حاضری کے لیے جاتا تو دیکھتا ایک ننھی سی بچی 8-10 سال کی، 9-10 سال کی، ایسی کچھ اس کی عمر ہوگی 8 سال سے 10 سال کے درمیان. وہ برقع اوڑھ کر کے آتی اور مزار رسول پہ قدموں میں بیٹھ کے کہتی، نانا میرا بابا گیا، 6 مہینے ہو گئے نانا اس کا کوئی خط نہ آیا. نانا میرا بھائی بھی گیا، میرا چھوٹا بھائی بھی گیا، میری امی بھی گئی، میری پھوپھی بھی گئی. نانا میرا پورا خاندان گیا، کوئی خط نہیں آتا ان لوگوں کا، کوئی خبر نہیں آتی. مجھے پہلے تو کہا تھا کہ ہم مکہ جا رہے ہیں، تمہاری طبیعت اچھی ہوگی تو علی اکبر کو بھیج کے بلا لیں گے، لیکن سنا ہے کہ وہ مکے سے کوفہ چلے گئے. کیوں وہ خط نہیں لکھتے مجھے؟ نانا آپ بھی کچھ کیجئے نا. وہ بچی روز آنا قدموں میں بیٹھ کر روتی. اس کے رونے نے مجھ سے کہا یہ کوئی رسول کے گھر کی بیٹی ہے تبھی تو نانا کہتی ہے رسول کو. میں کہا بی بی کون ہو تم؟ کہا میرا نام صغرا فاطمہ بنت حسین ہے، میں حسین کی بیٹی ہوں. سب گئے اور مجھ سے وعدہ کر گئے تھے کہ تم اچھی ہو جاؤ گی تو علی اکبر کو تمہارے بھائی کو بھیج کر کے تمہیں بلائیں گے، لیکن کوئی نہ خبر ہے نہ خط ہے. سنا ہے کہ مکے گئے تھے اور وہاں سے کوفہ چلے گئے، لیکن کوئی اطلاع نہیں آتی، کوئی خط نہیں آتا. روز دروازے پہ بیٹھتی ہوں کہ قاصد آئے گا تو کوئی خط نہ آئے. ہر ایک کا خط آتا ہے، میرا کوئی خط نہیں آتا. تو اپنے نانا کو منانے آتی ہوں کہ نانا آپ ان سے کچھ کہنا کہ وہ کوئی خیر خبر تو بھیجے، وہ کوئی اطلاع تو دے. ٹھیک ہے وہ اطلاع نہیں دیتے نا، وہ اتنا گم ہو گئے، اتنا مجھے بھول گئے. شاید ان لوگوں کو کوئی ہم سے اچھے لوگ مل گئے ہوں، وہ ہمیں بھول گئے. ایک کام کرو، وہ میرا خط نہیں مجھے نہیں بھیجتے نا، میں انہیں خط دے بھیجنا چاہتی ہوں. کوئی ہے کوفہ جانے والا؟ میں نے کہا میں کوفہ میں رہتا ہوں بی بی، اور تمہارے دادا علی کا میں محب ہوں اور میں حج کے لیے آیا تھا، میں جانے والا ہوں. تو اس نے خط لا کر کے دیا اور کہا میرا خط لے جائے گا نا، میرے بابا کو دے گا نا تو میں تجھے کچھ تحفے دوں گی، لیکن میرا خط لے جا کر کے پہنچانا. اچھا ٹھیک ہے. کچھ برتن لائی، پرانے برتن تھے. ایک کپڑے کی گٹھری لائی. کہا جب میرا بھیا علی اصغر گیا تھا نا تو اس وقت میرے پاس انتظام نہیں تھا کہ میں نئے کپڑے بھیا کو دے سکوں. دیکھو میں نے کتنے کپڑے خرید کے رکھے ہیں میرے بھائی کے لیے، یہ میرے بھائی کو دینا اور کہنا یہ علی اصغر کو پلانا. اور یہ برتن میری دادی فاطمہ کے برتن ہیں، یہ تمہیں تحفے میں خط پہنچانے کا انعام ہے. یہ کچھ روپیے ہیں، یہ بھی میرا خط پہنچانے کا انعام، لیکن میرے بابا تک پہنچانا ہے اور انہیں سلام کہنا اور کہنا بہت شکایت ہے تم لوگوں سے، صغرا کو تم نے خط نہیں لکھا، مجھے بھول گئے. وعدہ کیا تھا لے آئیں گے، لینے کسی کو نہیں بھیجا. لیکن صغرا کو کیا خبر تھی اس معصوم بچی کو کہ نکلے ہیں اور امتحان میں گرفتار ہوئے ہیں، خود کی خبر سے بے خبر ہیں، بیٹی کی کیا خبر لیتے. ہائے ہائے. میں نے کہا اے بی بی میں تمہارا غلام، تمہارے خاندان کا غلام، یہ برتن رکھو، یہ پیسے رکھو، میں علی اصغر کے جو تمہارا بھیا ہے اس کے کپڑے لے جاتا ہوں، خط دو. اور کہتے ہیں اس کے بعد کہ یہ میں کوفہ کی طرف جا رہا تھا، لیکن اچانک میرے گھوڑے کو کوئی اس طرف موڑتا تھا. میں اپنے گھوڑے کو ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر، پھر ادھر لے جاتا تو گئے بھی طاقت ادھر. آخر میں نے سوچا کہ کیا بات ہے تو مجھے دور سے فوج نظر آئی، تو میں نے سوچا یہ فوج شاید مجھے نقصان پہنچائے گی تو جنگل کے راستے چلو. لیکن جیسے ہی میں اس طرف آیا تو مجھے خیمہ نظر آیا اور پھر یہ سارا واقعہ. صغرا کا خط مولا حسین نے ہاتھ میں لیا اور اس اجنبی مسافر نے کہا یہ گٹھری ہے، اس میں علی اصغر کے کپڑے ہیں. جو زخم ابھی بھرا بھی نہیں تھا وہ پھر سے ہرا ہو گیا. گٹھری لائے، خط لائے. بیبیوں نے پوچھا کیا ہے؟ وہ مسافر واپس ہو گیا. کیا ہے؟ اس وقت بیبیوں سے کہا صغرا کا خط ہے. اور یہ کیا ہے؟ کہا صغرا نے علی اصغر کو پہننے کے لیے نئے کپڑے.
میرے اہل بیت، تمہاری بے کسی کو سلام۔ کیا گزری ہوگی، کیا گزری ہوگی۔ سغرا نے اپنے بھائی کے لیے نئے کپڑے بھیجے اور اس کے بعد علی اصغر کا لاشا دیکھ کے حسین کہتے اصغر تیری بہن نے تو کپڑے بھیجے، لیکن اسے کیا خبر کہ تجھے اب کپڑے نہیں، تجھے تو کفن کی ضرورت ہے۔ کچھ سنبھلے تو خط کھولا تو شکایتیں ہی شکایت، امی سے شکایت، ابا سے، پھوپھی سے، علی اکبر سے۔ خط کا مضمون تو صوفیہ نے، اہل اللہ نے بہت طویل لکھا ہے، لیکن ایک بات میں پڑھوں گا اس میں سے ضرور۔ خط کے مضمون میں ایک عبارت یہ تھی، علی اکبر اب تو آئے گا تو میں تجھ سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ تو نے مجھ سے کہا تھا نا کہ تو بہن اچھی ہو جائے گی تو میں تجھے لینے آؤں گا، تو لینے نہیں آیا نا، اب میں تجھ سے زندگی بھر روٹھی رہوں گی، بات نہیں کروں گی۔ حسین کہتے ہیں ہائے سغرا، تیرا بھیا علی اکبر تو جنت کی طرف مزے لینے چلا گیا، اب تو کیا اس سے بات کرے نہ کرے۔ اس کے بعد ایک کوہرام مچائے، کوئی طاقت کوئی ہمت نہیں ہے۔ یہ اشارے ہیں قسم خدا کی، اللہ کی عزت کی قسم، میرے گھر والے، میرے بھائی بھتیجے، میرے بچے جانتے ہیں، محرم کے ان ایام میں دن بھر اپنے کمرے میں بند رہتا، کسی سے کوئی بات نہیں کرنے کا دل ہوتا ہے، کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، میری اپنی حالت میں جانتا ہوں، میرا دین بڑا محتاط ہے، میرا مسلک بڑا محتاط ہے، جو پڑھا ہے وہ بیان نہیں ہو سکتا، جو لکھا ہے وہ کما کہو بیان نہیں ہو سکتا، لیکن مختصر یہ کہ اب وہ وقت آیا کہ مولا حسین نے کربلا میں جانے کا ارادہ کر لیا۔ سہاگ اجڑتا ہوا بیبیاں دیکھ رہی ہے، لاشیں پڑی ہے، خیمہ خالی ہو، سہاگ اجڑ رہا ہے، قائد قافلہ، سالار قافلہ اب قافلے کو ایک جنگل میں چھوڑ کر جانا چاہتا ہے۔ بیبیاں کہتی حسین کس کے بھروسے چھوڑ جاؤ گے؟ سکینہ کو ہوش آتا ہے، بابا آپ کے سینے کے بغیر مجھے نیند نہیں آتی، بابا آپ کس کے بھروسے مجھے چھوڑ جاتے ہیں؟ مولا حسین نے کہا سکینہ میری بیٹی میں تجھے اللہ کے بھروسے سونپتا ہوں، سن بیٹی میں تو جا رہا ہوں، اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے زندہ ہو جائے گا، بیٹی میری بیٹی تو یہ نہ سمجھنا کہ امتحان کے دن زیادہ ہوں گے، چند دن ہوں گے بیٹی، اس کے بعد میرے نانا کی امت ہر وقت تجھے سلام کرے گی، عزت کے ساتھ تیرا نام لے گی۔ ہاں لوگ اپنی بیٹیوں کے نام سکینہ اس لیے رکھیں گے کہ حسین کی بیٹی صابرہ کا نام سکینہ تھا۔ ہاں تیری بڑی قدر کی جائے گی، تیری عظمت کو سلام کیا جائے گا۔ باپ سے بیٹی لپٹتی ہے، بابا میں آپ کو جانے نہیں دوں گی، دیکھیں نا بھیا علی اکبر گئے واپس نہیں آئے، قاسم گئے واپس نہیں آئے، عسکر گئے معصوم اصغر واپس نہیں آئے، چچا عباس گئے واپس نہیں آئے، بابا آپ نہ جائیں نا، آپ جائیں گے تو ہمارا کیا ہوگا بابا آپ نہ جائیں نا۔ لیکن مولا حسین اپنی بہن کے سپرد کرتے ہیں، زینب کے سپرد، کہتے بیٹی میری راہ میں رکاوٹ نہ بنو، اب وہ وقت آ گیا ہے کہ حسین جان دینے جا رہا ہے۔ ہائے مولا حسین تیاری کرتے ہیں، زینب کو ایک مرتبہ پھر جوش آتا ہے، حیدر کرار کی بیٹی میں خون حیدر نے ایک نئی جان پیدا کر دی ہے، فاطمہ کے دودھ نے زینب کو ایک عجیب کام کے لیے تیار کر دیا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے، یہ روایت حضرت بابا فرید الدین گنج شکر نے بیان کی ہے، اور جس کو بیان کرنے والے محبوب الہی ہے، کہ ایک خاتون نے خواب دیکھا کہ میدان کربلا میں ایک پردہ نشین خاتون آئی ہے، اور وہ کربلا کے چھوٹے چھوٹے کنکر کو اٹھا کر اپنے دوپٹے میں رکھتی ہے، کنکریاں اٹھاتی ہے دوپٹے میں رکھتی ہے، اور اپنی آستین سے عرض کربلا کی زمین کو صاف کرتی ہے۔ جیسے ہی اس بی بی نے خواب میں دیکھنے والی نے پوچھا، اے بی بی کربلا میں کنکر اٹھا کر اپنی گود میں رکھ رہی ہے، آستین سے زمین کو صاف کر رہی ہے، کیا ہے؟ تو اس بی بی نے کہا مجھے پہچانتی ہے، میں فاطمہ ہوں، بنت رسول ہوں، نبی کی بیٹی ہوں، میرا حسین کربلا میں جنگ کے لیے آیا ہے، کل عاشورہ ہے، میرا بیٹا شہید ہونے کے لیے یہیں پہ گرے گا، ماں ہونا ممتا نے اجازت نہیں دی کہ گرتے ہوئے حسین کو چھوڑ دوں، تو میں نے سوچا کہ جب میرا بیٹا یہیں گرے گا تو یہاں کی کنکریاں صاف کر رہی ہوں، یہاں کی مٹی ہٹا رہی ہوں، تاکہ جب میرا بیٹا زمین پہ گرے گا تو میرے بیٹے کو کنکری نہ چبھنے پائے۔ اس شان کے ساتھ مولا حسین کی شہادت کا وقت آتا ہے، جمعہ کا دن ہے، دوپہر ڈھل چکی ہے، پورا خیمہ خالی ہو چکا ہے، مولا حسین خون سے چہرہ رنگین کر چکے ہیں، کپڑے خون سے رنگین ہے، اور اللہ اکبر اب وہ سالار قافلہ، تاجدار کرب و بلا، نواس رسول، وہ حسین جس نے نانا کے وعدے کو وفا کرنا ہے، وہ حسین جس کو رسول اللہ اپنی پیٹھ پر بٹھاتے ہیں، اب وہ حسین کربلا میں جانے کی تیاری کر رہا ہے۔ زینب کہتی ہے نہیں حسین ایسے نہیں، میں اب تمہیں شہادت کا دلہا بناؤں گی، ماں کی ذمہ داری کو میں پورا کروں گی۔ زینب تیری عظمتوں کو سلام، میری آقا زادی، میری آقا تو سن رہی ہے، تیری روح کو سلام۔
तेरी तुरबत को सलाम। मेरा ईमान है पंजतन इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं, ज़ैनब इस महफिल की तरफ मुतवज्जे हैं। करबला वाले अर्ज़ करबला से इस महफिल को देख रहे हैं, तुम्हारे चेहरे उनके सामने हैं, मेरा कहना उनके सामने है, और हमारे मुकद्दर उरूज पर हैं। हमारी बुरी तकदीरें भली हो रही है, हमारी मुसीबतें राहतों में तब्दील हो रही है। हाँ हाँ, साल भर नहीं, जिंदगी भर इस महफिल की बरकतें तुम महसूस करोगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। अल्लाहु अकबर। सैयदा ज़ैनब कभी फातिमा बनती है, कभी अली बनती है, कभी हसन का रोल अदा करती है, कभी हुसैन का किरदार अदा करती है। एक औरत है लेकिन क्या हौसला है। पता चला फातिमा के दूध की तासीर यही है, अली के खून की तासीर यही है। सैयदा ज़ैनब कुबरा ने एक गठरी खोली और उसमें से नाना का अमामा निकाला। हुसैन, अम्मी ने विसाल के वक्त तो कुछ अमानतें दी थी। कहा था बेटी ज़ैनब, जब मेरा बेटा करबला जाएगा मैं साथ नहीं रहूंगी, तू रहेगी साथ में। जब मेरा बेटा शहीद होने के लिए जाए तो ये नाना का अमामा उसके सर पे बांधना। नाना का अमामा दिया मौला हुसैन ने, उसे सर पे बांधा, अपने नाना का रसूलुल्लाह का अमामा सर पे बांधा। और उसके बाद फिर उसी गठरी से एक पुराना दुपट्टा जिसमें 17 या 17 से ज्यादा पेबंद थे, ज़ैनब ने गठरी से निकाला। हुसैन, इस दुपट्टे को पहचानते हो? जैसे ही वो दुपट्टा खुला, उसके पेबंद, उसकी बज़ाहिर बोसीदगी, फटापन जब सामने आया तो सैयदा ज़ैनब और इमाम हुसैन आज से 50 साल पीछे चले गए, निस्फ सदी पीछे हो गए। हुसैन ने उस दुपट्टे को चूम के आंखों से लगाया। हाँ ज़ैनब, ये अम्मी फातिमा का दुपट्टा है, 50 सालों के बाद भी माँ का दुपट्टा तुम्हारे पास है। हाँ, इसलिए कि जब अम्मी 3 रमज़ान शरीफ को दुनिया से जा रही थी तो अपना दुपट्टा मुझे सौंपा था। ज़ैनब, मेरा बेटा जब करबला में जाने लगे ना तो उसके कंधों पर या उसकी कमर पर मेरा दुपट्टा बांध देना, इसलिए कि वो बेटा कभी नाकाम नहीं होता, उस बेटे को कभी नाकामी नहीं होती जिसके सर पे माँ का आंचल हो। मेरा बेटा तन्हा ना जाए, माँ की दुआओं के साथ जाए, माँ की आंचल के साथ जाए। अल्लाह अकबर। दोनों बहन भाई रोने लगे। नाना का अमामा, माँ का दुपट्टा, जुल्फ़िकार हैदरी, अली के मुर्तज़ा की तलवार, हजरत हमजा की ढाल, जाफर तैयार का पटका, इस शान से शहादत का दूल्हा बनकर मेरा हुसैन अपने खैमे में तैयार होता है। मौला हुसैन अपने घर वालों को वसीयत करते हैं, रोना नहीं, इस तरह नहीं रोना जैसे मना किया गया। आंसू यूं ही निकल पड़े तो ये तो मोहब्बत है। वाहवेला नहीं करना, चेहरे पे तमाचे नहीं मारना, बाल नहीं खींचना, मातम नहीं करना, शिकायत नहीं करना। और तुम्हें तो अभी बहुत मुसीबतें देखनी है। ज़ैनब को कहा, ज़ैनब, अब मेरे बाद मेरे काफिले की सालार तू होगी। फिर कहते हैं, ज़ैनुल आबदीन, मेरे बेटे जरा होश में तो आ। दामन की हवा दी, बीमार ज़ैनुल आबदीन ने आंखें खोली, बहन को बिठाया, बेटे को सीने से लगाया। मेरा जानशीन ये है। सीने से लगा के इल्म की अमानतें जो सीने में थी उंडेल दी। फिर उसके बाद मौला हुसैन यूं बोल पड़े कि फरिश्तों की भी चीखें निकल गई, ज़मीन करबला का जर्रा जर्रा थर्रा गया। हुसैन कहते हैं, बहन, तुम और ज़ैनुल आबदीन जब नाना के मज़ार पे लुटा हुआ काफिला लेकर के जाना ना तो नाना को मेरा सलाम कहना और पूरी दास्तान सुनाना। नाना, तुम्हारी उम्मत ने मेरे हुसैन के मासूम बच्चे को भी पानी नहीं दिया, अली अकबर को भी शहीद किया, कासिम को भी शहीद किया, अब्बास के बाजू को शहीद किया। नाना, लेकिन आपके हुसैन ने शिकवा नहीं किया, आपके हुसैन ने शिकायत नहीं की। आपका हुसैन सब्र रजा का पैकर बन करके डटा रहा। सारा हाल नाना को सुनाना, सारी कैफियत नाना को बताना और कहना, नाना, आपके हुसैन ने आपके दीन को रुस्वा नहीं होने दिया। दीन की सरबुलंदी के लिए हुसैन ने अपना सब कुछ लुटा दिया। सब रो रहे हैं। उस्ताद ज़मन कहते हैं, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है, फातिमा के लाडले का आखिरी दीदार है। हश्र का हंगामा बरपा है, मियाने अहले बैत, लाशें पड़ी है, खैमे खाली हो। ज़ैनब रिकाब थामती है, मौला हुसैन घोड़े पे बैठते और उसके बाद आगे बढ़ते। जैसे आगे बढ़े, यजीदियों के अंदर हड़बड़ मच गई। चीख पड़े यजीदी, हुसैन आते हैं, लेकिन निढाल हो चुके हैं, थक चुके हैं। 56 साल 5 दिन 5 महीने 5 दिन की उम्र है। 56 साल 5 महीने 5 दिन की उम्र है। लाशें उठा उठा के निढाल है, लेकिन अब भी हुसैन का अज़्म इतना मजबूत है कि अगियार लरज़ रहे हैं, लर्जा बरंदाम है। मौला हुसैन ने कहा, अब भी तुम अगर हक पर आ जाओ, अब भी अगर तुम दीन का साथ दे दो, अब भी अगर तुम तौबा कर लो, अब भी अगर तुम यजीद की हिमायत से ताइब हो जाओ, तो जैसे हुर को माफ कर दिया तुम्हें भी माफ कर दूंगा। अली अकबर को तुमने कत्ल किया, मैं अली अकबर के कातिल को भी माफ करूंगा, मैं कासिम के कातिल को भी माफ करूंगा, अली असगर के कातिल को भी माफ करूंगा, सब माफ कर दूंगा। इसलिए कि मेरे नजदीक मेरी औलाद से ज्यादा अल्लाह के दीन की हिमायत कीमती है, अल्लाह का दीन कीमती है। लोगों तौबा कर लो, हक की तरफ आ जाओ। उन्होंने चीख चीख करके कहा, जल्ला करके कहा, हुसैन किस्सा तमाम करो, किस्सा कोता करो, या तो बैत करो या तो लड़ो। मौला हुसैन ने कहा, मैंने हुज्जत तमाम कर दी है, बार बार हुज्जत तमाम की है, अब
आले रसूल का जज्बा बोलता है, अब आले रसूल की जबान बोलती है। वो शहजादे रसूल कहता है मुझे कत्ल करना है, कत्ल कर लो, लेकिन मेरे नाना की शफाअत से महरूम हो जाओ। मुझे कत्ल करने के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी। अब ये नबी के शहजादे की जबान बोल रही है। हुसैन कहते हैं मुझसे लड़ने के बाद, मेरी शहादत के बाद तुम में फूट पड़ जाएगी, तुम तबाह हो जाओगे, तुम्हें बर्बाद कर दिया जाएगा, तुम्हारे घरों को लूटा जाएगा, तुम्हारा चैन छीन लिया जाएगा, तुम्हारा सुख छीन लिया जाएगा। और दुनिया के कुत्तों, तुमने दुनिया की मोहब्बत में आले नबी का चमन वीरान किया है, फातिमा का चमन वीरान किया है, अली का चमन वीरान किया है, नबी का चमन वीरान किया है। शर्म तो करो, जिस नबी का कलमा पढ़ते हो उसी नबी की आल के दुश्मन बने हो, उसी नबी के घराने के दुश्मन बने हो। मौला हुसैन ने बातें कही और तीर आने शुरू हो गए। मौला हुसैन प्यास के बावजूद बिखरे हुए शेर की तरह उन पे टूट पड़े और ऐसी सफों को उल्टा कि उन्हें याद आया कि हुसैन भी किसी बहादुरी की एक इस्तिलाह का नाम है। मौला हुसैन ने यूं किया, चारों तरफ से घेर लिए गए, चारों तरफ से घेर लिए गए। बीबियां खेमे के दरवाजों पर झांक झांक कर देख रही है। फातिमी लाल अनकरीब गहन में आने वाला, फातिमी चांद को गहन लगने वाला है। जैसे ही चारों तरफ से घेरे गए, इतने ने जय वो नेजे की अन्नियां जिस्म में टूटी, उसकी कोई तादाद ही नहीं, पूरा जिस्म खून से लहूलुहान है। मोतबर और मोहतात मौरखीन ने यह कहा कि 33 जख्म नेजों के थे और 34 जख्म तलवारों के घाव के थे, और जो नेजे की अन्नियां जो जिस्म में टूटी हुई थी, चुभी हुई थी, उसका तो कोई शुमार ही नहीं है। पूरा जिस्म छलनी छलनी था। शेर खुदा का शेर जमीन पे आया, जमीन पे हुसैन गिरे, दीन को गिरने से बचाया। फातिमा का लाल जमीन पे आया, अल्लाह के दीन को गिरने से बचाया। और जब आए हैं जमीन पर तो उस वक्त तो प्यास की शिद्दत से बड़े बेताब थे, लेकिन जमीन पे गिरने का अंदाज ये था कि घुटने जमीन पर थे, हाथ से जमीन पर सहारा लिया और उसी हालत में सर को सजदे में रखा। कहाँ है हुराने बहिश्त? उस वक्त की मंजर कशी उस्ताज़े ज़मन यूं करते हैं। जन्नत की हूरें ठंडे ठंडे पानी के प्याले लेकर के खड़ी है, शहादत दुल्हन बनकर लाल जोड़ा पहन करके खड़ी है। फातिमा तो ज़हरा रो रही है, रसूलुल्लाह के हाथ में खून की एक कांच की एक शीशी है, बोतल है, उसमें सबके खून जमा हो गए, अभी हुसैन का खून बाकी है। हुजूर की जुल्फें बिखरी है, आका के बदन पर कपड़ों पर खून के धब्बे हैं। मेरे रसूल उस शीशी के अंदर अब हुसैन का खून भरेंगे और मैदान करबला में नवासे का इम्तिहान देखने आए। फातिमा तो ज़हरा बेटे का इम्तिहान देखने आई। मौला अली वो पाकीज़ा रूहों का नज़ूल है। ऐसे आलम के अंदर हुसैन सर को सजदे में रखते हैं और यूं अर्ज़ करते हैं, यार अब भी तू राजी है या नहीं? तो निदा आती है, या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती। हुसैन तो मुझसे पूछता है अब कि मैं राजी हूं कि नहीं, अब तेरा खुदा तुझसे पूछता है, ऐ मेरे यार हुसैन अब तू भी बता दे कि तू अपने अल्लाह से राजी है कि नहीं। मैंने तो तेरी रजा के लिए सब किया, सब लुटा दिया, सब लुटा दिया। हुसैन सुब्हान रब्बियल आला कहते हैं, सन्नान वलदुश शैतान खौली पलीद और उसके बाद शिमर लईन, ये तीनों टूट पड़ते हैं मौला हुसैन पर। और उसके बाद मौला हुसैन का सर अनवर, ये तीनों मिलकर के तन से जुदा करते हैं। मौरखीन ने अलग अलग रिवायतें की हैं, मैंने तीनों को एक साथ जोड़ दिया है इमाम अली मकाम की तौफीक से, ताकि रिवायतों में तत्बीक हो जाए कि ये तीनों ने एक साथ जो है मौला हुसैन को शहीद किया। और शहीद करने के बाद जैसे ही सर तन से जो है वो जुदा हुआ, शहादत जो सुर को जोड़ा पहने खड़ी थी वो दौड़ कर आई, लिपट कर हुसैन के सीने लग गई और हुसैन बहते हुए खून का सहरा बांधकर जो है वो जन्नत का दूल्हा बनकर जन्नत की तरफ बढ़ पड़े। जैसे सर काटा गया, वो नाना का अमामा, वो प्यारी प्यारी जुल्फें, वो सर उठा करके लेके भागे। उसी पर उन्होंने बस नहीं किया, बीवियों की चीखें निकल गई है, बीवियां हैरत में हैं, सुहाग उजड़ गया, सुहाग उजड़ गया, घर लुट गया, अब कुछ नहीं बचा। एक बीमार ज़ैनुल आबिदीन है और छोटे छोटे बच्चे हैं। इसी पर दास्ताने करबला खत्म नहीं होती। अभी तो इतना ही कुछ हो रहा था कि बीवियों ने सोचा होगा या कोई मौलिक सोचता होगा इसी पर मामला खत्म होगा। अभी ये हुआ, उन्होंने इमाम हुसैन के कपड़े उतारे, अमामा छीना, अंगूठी ली, तलवार छीनी, सब लिया और उसके बाद 10 पलीदों ने मिल करके मौला हुसैन की लाश पे घोड़े दौड़ाए। सोचो उन औरतों के दिलों पे क्या गुजरती होगी। सूरज ने चेहरा मुंह छुपा लिया। इमाम हुसैन जैसे ही शहीद हुए, मोतबर मौरखीन लिखते हैं, सूरज को गहन लगे, रात जैसा समा हो गया, दिन में रात जैसा समा हो गया, दिन को तारे नजर आने लगे, खून की बरसात होने लगी। ये हालात पैदा हो गए। उन पलीदों की आंखों पे पट्टी थी, इसलिए कि जब किसी से दीन लिया जाता है तो अकलें छीन ली जाती है, आदमी को कुछ खबर नहीं होती क्या हो रहा है। उन लोगों ने इस पर भी बस नहीं किया, वो तारे ही देख करके डर जाते, लेकिन चूंकि उनके दिल सियाह हो चुके थे, अल्लाह ने उनके दिल पे मुहर लगा दी थी, उन पर कोई असर
नहीं हुआ। उन्होंने मौला हुसैन के कपड़े निकाल लिए, घोड़े दौड़ाना शुरू किए। बीबियां रोने लगी। अभी वो रो ही रही थी कि जो लाशें रखे हुए थे उन्हें भी पकड़ पकड़ कर मैदान बीच में लाया गया। बच्चों की गर्दनें उड़ाई गई, आना मोहम्मद की गर्दनें काटी गई, अली अकबर की गर्दन काटी गई, अब्बास की गर्दन काटी गई, 72 शोहदा की गर्दनें काट ली गई और काटने के बाद उसे अपने कब्जे में कर लिया गया और सारे शोहदा के कपड़े उतार करके फिर उन पर घोड़े दौड़ाए गए। बीबी ज़ैनब कहती थी, या रसूल अल्लाह, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या मोहम्मदा, या रसूल अल्लाह, आप पे दुरूद और सलाम हो, आपके नाज के पालों पे घोड़े दौड़ते हैं, घोड़ों की टापों से आपके नाज के पाले कुचले जाते हैं। या रसूल अल्लाह, आप भी आकर के देखें, ये तमाशा आप भी आकर के देखें। सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा अल्लाहु अकबर ये फरियाद कर रही है कि कुछ माज़अल्लाह इब्ने साद, ये अमर बिन साद जिसका नाम है, लेकिन मैं इसको शकी इब्ने साद कहता हूँ, ये पलीद इब्ने साद है, ये खबीस इब्ने साद है। अल्लाहु अकबर, वो और शिमर पलीद आए और आने के बाद बीबियों के खेमों की तरफ बढ़े और बीबियों के दुपट्टे छीन लिए। सैयदा ज़ैनब ने कहा, पलीदो, हमारे लिए आयत ततहीर नाजिल हुई, हमारे दुपट्टे छीन। कुछ लोग कहते हैं दुपट्टे नहीं छीने गए। मैं कहता हूँ खुदा जाने क्या हमदर्दी है यजीदियों से कि उनके जराइम वो कम करना चाहते हैं। फकीह मिल्लत ने लिखा दुपट्टे छीने गए, उस्ताद ज़मन ने लिखा दुपट्टे छीने गए, शाह अब्दुल अजीज ने लिखा दुपट्टे छीने गए, बड़े बड़े मौर्रिखीन उलमा मुहद्दिसीन, इमाम सयूती ने लिखा दुपट्टे छीने गए, दुपट्टे छीने गए। एक पलीद सैयदा सकीना की तरफ बढ़ा, कान में सोने की बालियां थी, ऐसी बाली खींची कि सकीना के दोनों कान कट गए, खून की फुहारें निकली। बच्ची ने कहा, लेना था तो यूं ही लेते, मुझसे कहते मैं उतार कर दे देती, लेकिन ऐसा खींचा खून निकल रहा है। जब बच्ची ने एहतजाज किया, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए, सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए। हाय हाय, ये हाल किया गया, असगर का झूला लूट लिया गया, खेमे को आग लगा दी, उन बीबियों को खेमे के अंदर भी नहीं रखा गया। हाँ, आज ही की रात है जिसे शाम गरीबा कहती, बीबियों को खेमे के अंदर भी नहीं रखा, आग लगा दी खेमों को। बीबियां खेमों के बाहर निकल गई, जिनके घर में बे इजाजत जिब्रील आते हैं, जिब्रील जिनके घरों में इजाजत के बगैर नहीं आता, आज उन बीबियों को खेमों से भी बाहर कर दिया गया है। दुपट्टे छीने गए, बालियां खींची गई, जेवरात छीने गए और उन मुकद्दस बीबियों के खेमे को जब आग लगी, हमीद इब्ने मुस्लिम कहता है कि मैंने देखा एक औरत बड़ी हसीन और जमील थी, वो जब खेमे को आग लगी तो आग पे चलकर कभी खेमों के अंदर जाती, कभी बाहर आती, कभी अंदर जाती, कभी बाहर आती। हालांकि हमीद इब्ने मुस्लिम ये यजीदियों के खेमे का आदमी, लेकिन वो इस वाक़े से इतना मुतासिर हुआ, इसने आगे बढ़ाई बात को कि एक बीबी को मैंने देखा कि वो अंदर आती बाहर। मैंने पूछा, है बीबी, तुझे अपनी जान से मोहब्बत नहीं है, तू अंगारों पे चल रही है? उस बीबी ने कहा, क्या करूं, मेरा एक भतीजा अंदर बेहोश पड़ा है, हुसैन का एक ही बेटा बचा है, अगर वो भी आग में जलेगा तो हुसैनी सैयद दुनिया में कहाँ रहेंगे? मेरा भतीजा अंदर है, उसको लाना चाहती हूँ लेकिन ला नहीं पाती। फिर हमीद कहता है, मैंने देखा उसने पूरी ताकत को इकट्ठा किया और बीमार ज़ैनुल आबिदीन को अपने कंधे पे डाला और कंधे पे डालकर आग पर चलती हुई वो बाहर निकली। इस तरह बीमार ज़ैनुल आबिदीन की जान बचाई। ए ज़ैनब, सैयदा ज़ैनब का खुतबा किसी दिन आप मुझे याद दिलाएं तो मैं वो पूरा खुतबा पढ़ना चाहता हूँ। उनका पूरा खुतबा इतना दिलसोज है, इतना ईमान अफरोज है कि एक अजीब हौसला मिलता है। ज़ैनब इस कदर हिम्मत औरत का नाम है कि सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे उठाकर सिर्फ एक ज़ैनुल आबिदीन अपने भतीजे की जान नहीं बचाई, बल्कि सैयदा ज़ैनब ने ज़ैनुल आबिदीन को कंधे पे क्या उठाया, गोया कि उसने इमामों की इमामत अपने कंधे पे उठाई है। हाँ, बाकिर की इमामत भी उसी कंधे पे उठी, हज़रत जाफर की इमामत भी उसी कंधे पर है, इमाम तकी नकी जव्वाद अली रज़ा हसन अस्करी इमाम मेहदी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, इन सारों की इमामत गोया के वो अपने कंधे पे उठाकर ले जा रही है और क़यामत तक के हुसैनी सारे सज्जदों की जिंदगी ज़ैनब अपने कंधों पे उठा करके लेकर जा रही है। एक ज़ैनुल आबिदीन को बचा करके ज़ैनब ने गोया के क़यामत तक के हुसैनी सैयदों को जिंदगी अता कर दी है। ये ज़ैनब का किरदार है। गरीब नवाज का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है, बंदा नवाज का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है, महबूब इलाही का शुमार हुसैनी सैयदों में होता है। ये वो हुसैनी सादात है। ज़ैनब मेरे माँ बाप तुझ पे कुर्बान, मेरी जान तेरे कदमों पे कुर्बान। अगर तू ज़ैनुल आबिदीन को न बचाती तो मोहम्मद बाकिर को हम किससे पाते, इमाम जाफर को किससे पाते, इमाम मूसा कासिम को किससे पाते, अली रज़ा का चेहरा हम किस तरह देखते, हज़रत तकी नकी जव्वाद हसन अस्करी को हम कहाँ पाते, इमाम मेहदी का वजूद कहाँ होता, गौसुल आज़म की अम्मी कहाँ पैदा होती, क्योंकि वो भी हुसैनी सादात में से हैं। तूने एक को बचाया, गोया कि इतने सैयदों को जिंदगी अता की है। अल्लाह तेरी कब्र पर रहमत और नूर की बरसात फरमाए। अल्लाहु अकबर। अभी यही सब कुछ हो रहा था कि असर का वक्त आया। सैयदा ज़ैनब ने फरमाया, नबी के घर की बेटियों, तारे नजर आ रहे हैं लेकिन अभी राहत नहीं हुई, ये असर का टाइम है, जल्दी से नमाज असर पढ़ो। अगर तुमने नमाज छोड़ दी, मुझे डर लगता है कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये करबला की दी हुई कुर्बानी रद्द हो जाए। देखो ये फिक्र दी है सैयदा ज़ैनब ने। अरे तुम्हारे यहाँ की शादियों में तुम नमाज छोड़ते हो, क्रिकेट देखकर तुम नमाज
چھوڑتے ہو, فلموں میں بیٹھ کر نماز چھوڑتے ہو. حسینیوں منافق مت بنو, پکے حسینی بنو. فکر حسینی کو اختیار کرو, فکر زینب کو اختیار کرو. کربلا میں 72 جسموں پہ گھوڑے دوڑ رہے ہیں, پھر بھی زینب کہتی ہے اب بھی نماز چھوڑنے کی اجازت نہیں, اب بھی نماز پڑھو, کیونکہ نانا کا فرمان ہے. آقا نے فرمایا جس نے اثر چھوڑ دی اس کے زندگی بھر کے اعمال برباد کیے جا سکتے ہیں. اے نبی کی بیٹیوں, اب تمہیں بہت رونا ہے, بہت رو چکی ہو اور ابھی بہت رونا باقی ہے, اس لیے نماز پڑھ لو, بعد میں رونا. اللہ اکبر. بیویوں میں سے کسی نے کہا زینب وضو کے لیے پانی نہیں تو تیمم کیا جاتا ہے, تیمم تو مٹی سے کیا جاتا ہے, یہاں تو پورا خون ہی خون ہے, ہم کہاں تیمم کریں. اس وقت سیدہ زینب نے کہا تھا اپنے بیٹے, اپنے بھتیجے, اپنے شوہر, اپنے خاندان والوں کے خون سے تیمم کرو مگر نماز پڑھو, اب بھی تم پر نماز معاف نہیں ہے. مسلمانوں یہ نماز ہے جو نبی کے گھر والوں نے جسے کبھی ترک نہیں کیا, کربلا میں بھی ترک نہیں کیا. مولا حسین نے سجدے میں جان دی ہے, حسین کا سجدہ وہ سجدہ ہے, سجدہ کرتے سب نے دیکھا, سر اٹھاتے کسی نے نہیں دیکھا. اور میرے آقا نے فرمایا کہ جو جس حالت میں دنیا سے جائے گا قیامت کے دن اسی حالت میں اٹھے گا. حسین سجدے میں دنیا سے گئے ہیں, جب قیامت ہوگی کوئی کھاتے اٹھے گا, کوئی کلمہ پڑھتے اٹھے گا, کوئی درود پڑھتے اٹھے گا, حسین سجدے سے سر اٹھاتے ہوئے اٹھے گا. یہ مولا حسین کا سجدہ ہے. اس لیے میں تمہیں مولا حسین کا واسطہ دے کر کے کہتا ہوں, آوارگی چھوڑ دو, حرام کاروبار چھوڑ دو, اسلام دشمن طاقتوں کو خوش مت کرو, نماز کے پابند بنو, عبادت کے پابند بنو, اور آج سے عہد کرو مولا حسین ہم تیرے سچے غلام ہیں, زینب ہم تیرے بابا کے غلام ہیں, تیرے غلام ہیں. ہم نے کل تک جہالت میں گناہوں میں زندگی گزاری, آج کے بعد نہیں گزاریں گے. آپ کے نانا کو نماز پسند تھی, ہم آج سے نماز کے پابند بنیں گے. داڑھی پسند تھی, داڑیاں مڈا کر گٹر میں پھینک کر ہم یزیدی نہیں بنیں گے, ہم حسینی بنیں گے. داڑھی رکھیں گے, کیرم نہیں کھیلیں گے, تاش کے پتے نہیں کھیلیں گے. اور یاد رکھو ساتھ ہی ساتھ کربلا کی جنگ یہ پہلی مسلک کی لڑائی ہے, کیونکہ یزید بھی کلمہ پڑھتا تھا, حسین بھی کلمہ پڑھتے تھے. لوگ کہتے خدا ایک ہے, رسول ایک ہے, لڑتے کیوں ہو؟ ہم کہتے حسین نے ذہن دیا ہے کہ جو نبی اور آل نبی والا ہے بس وہی مومن ہے, اور جو آل نبی کا اور نبی کا گستاخ اور غدار ہے وہ مومن نہیں ہے. اس لیے ان سے بچو, ایسے لوگوں سے جو غدار ہے نبی اور آل نبی کی. عرض یہ کر رہا تھا, اثر پڑی گئی, بیبیاں کی چادریں تو چھین لی گئی تھی. سیدہ زینب نے کہا بیبیوں, او بیبیوں, نبی کی بیٹیوں, کل تک کہ تم دوپٹوں سے چہرہ چھپاتی تھی, اللہ نے بڑے بال اس لیے دیے ہیں کہ اب تم اپنے بالوں سے چہرہ چھپاؤ. سوچتی تھی کہ رات ہوگی تو کچھ راحت ملے گی, رات ہوگی تو کچھ آرام ملے گا. بس اب گفتگو سمیٹتا ہوں, چونکہ دعا بھی کرنی ہے, وقت بھی تمام ہو رہا ہے. اطمینان کے ساتھ سنیں. شام ہوتے ہوتے تمنا تھی, خیال تھا کچھ آرام ملے گا, لیکن شام آئی تو اب یہ ہوا, شام آئی تو یہ ہوا. زین العابدین کی پیٹ پہ تازیانے لگائے گئے, ریت پر بیویاں پڑی ہوئی ہیں, بے کسی, مظلومی, بے بسی, مسافرت, پردیس, کچھ نہیں ہے, بس بے بسی اور بے بسی اور بے بسی. لاشیں ہیں. زینب نے چہرے پہ بالوں کا پردہ کر لیا ہے, رات ہو چکی ہے. فرات کے کنارے پر کبھی درندوں کے دھاڑنے کی آواز آتی ہے تو سہم جاتی ہے. کل تک کہ پورا گھر بھرا تھا, خیمے کے خیمہ بھرا تھا, اب نہ خیمہ ہے نہ خیمے میں رہنے والے ہیں. زینب نے بہت تلاش کیا تو ایک ٹوٹا ہوا خنجر کہیں سے زینب کو مل گیا. بہنوں کی, بھابھیوں کی, بچیوں کی اور بھتیجے کی حفاظت اب زینب کے ذمے پہ. ایک ٹوٹا ہوا خنجر لے کر کے زینب کبھی ادھر کو کبھی ادھر کو. ایسے میں دیکھا ایک نقاب پوش گھوڑے پہ بیٹھ کر لاشوں کی طرف بڑھتا ہے. زینب نے خنجر تان دیا, خبردار آگے نہیں بڑھنا, سب تو لوٹ چکے, اب کیا لوٹتے ہو. آنے والے نے کہا مجھے نہ روک بیٹی, پہچان. خنجر پیچھے کیا, آنے والے نے نقاب پلٹا تو دیکھا کہ وہ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ تھے. لپٹ گئی, بابا ابھی آپ آئے, اصغر شہید ہو رہا تھا تب نہیں آئے, اکبر کے وجود پہ خنجر چل رہے تھے تب نہیں آئے, میرا بھیا حسین پیاسا شہید ہوا تب نہیں آئے. مولا علی نے کہا بیٹی اس وقت تو امتحان تھا, میں تجھے تسلی دینے آیا ہوں. امتحان میں مدد نہیں کی جاتی بیٹی, امتحان میں تو استقامت کی دعا کی جاتی. جب میرا حسین کربلا میں تڑپ رہا تھا تو تیری امی, تیرے نانا اور میں دعا کرتے تھے, اللہم آتی الحسین صبر و اجرا, اللہ میرے حسین کو صبر اور اجر عطا فرما. بہن تیرا بھائی, بیٹی تیرا بھائی کامیاب ہو گیا, زینب تیرا بھائی کامیاب ہو گیا. بس سیدہ زینب رونے لگی, اور روتے روتے جب دوپٹہ تو تھا نہیں, جب اپنے ہاتھ کی مٹھیوں سے آنسو پوچھے تو مولا علی غائب تھے, کوئی موجود نہیں تھا سامنے. پھر روتے ہوئے خنجر لے کر کے ادھر کو ادھر گھومتی ہے, بس اشارہ دے کر آگے بڑھتا ہوں. لاشوں کے قریب سے اندھیرے میں رونے کی کسی کی آواز, سسکنے کی آواز آ رہی تھی. جب زینب آواز پہ چلتی ہوئی گئی تو کیا دیکھا, ایک لاش پڑی ہوئی ہے اور اس کے سینے پر ایک بچی سر رکھ کر کے رو رہی ہے, بابا مجھ سے بات کرو نا, بابا میرے سر پہ ہاتھ رکھو نا, بابا مجھے اپنے سینے پہ سلاؤ نا. جب دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ سکینہ تھی. سکینہ میرے بچے یہاں کیسے, تو کیوں رو رہی, کون ہے یہ؟ سکینہ نے کہا پھوفی پہچانو یہ میرے ابا ہے, حسین ہے میرے بابا ہے.
بیٹی अंधेरे में तुझे कैसे पता चला ये तेरे बाबा हैं? कहा फूफी जब मैं रोती हुई लाशों के करीब आई, अब्बा तुम कहाँ हो, बाबा तुम कहाँ हो, आज मुझे नींद नहीं आ रही है बाबा। कल तक तो अपने सीने पे सुलाते थे ना बाबा, मुझे आज भी अपने सीने पे सुलाओ। फूफी जब मैंने ये कहा तो इसी लाश से आवाज आई, मेरे बच्चे सकीना मैं यहाँ हूँ, इधर आ। तो जब इससे आवाज आई तो मैं यहाँ आ गई और मैंने पहचान लिया यही मेरे बाबा है। बच्ची को उठा करके लाया और अभी फिर एक अजीब सा दिलसोज मंजर सामने आया कि हुर की बीवी ने कहा, देखो यजीदियो ओ पलीदो, देखो वो पड़े हुए हैं, 3 दिन से ज्यादा हो रहे हैं, प्यास की शिद्दत में तड़प रहे हैं, मर जाएंगे प्यासे, इन्हें कहाँ ले जाओगे, क्या जवाब दोगे? अरे जिन्हें शहीद करना था वो तो कर चुके हो, अब इन्हें कुछ पानी तो पिला दो, ये बीवियां लड़ने वाली थोड़ी है, इन्हें तो कुछ पिला दो, इन बच्चों को कुछ पिला दो। उन्होंने कहा ठीक है तू ही ले जा पानी। यजीदियों ने हुर की बीवी के यहाँ से पानी भेजा। जैसे हुर की बीवी आती हुई नजर आई, फिर खंजर तन गया बिनते अली का, करजदार आवाज में, कौन हो, रुको। उसने हाथ जोड़ के कहा, बीबी मैं हुर की बीवी हूँ, मुहिब्बे अहले बैत, पानी लेके आई। पानी? पानी का नाम सुना, असगर की प्यास याद आ गई, अकबर की प्यास याद आ गई, कासिम की प्यास याद आ गई, अब्बास के कटे बाजू याद आ गए, मौला हुसैन की प्यास याद आ गई। ले जा तेरा पानी, हमें नहीं चाहिए, हमें तो पानी के नाम से भी नफरत हो चली है। नहीं बीबी, आपको आपकी अम्मी फातिमा का वास्ता, अगर पानी कबूल नहीं करेंगी तो शायद वो मेरा मजाक उड़ाएंगे। अच्छा ले आ पानी। पानी आया, बीबियों ने पानी देख करके रोना शुरू किया, कोहराम मच गया। पानी के कुछ छींटे सकीना पे दिए गए, सकीना बेहोश थी, होश में आई। होश में जब आई है सकीना तो पानी को कटोरे में डालकर कहा, सकीना ये हुर की बीवी पानी लाई है, मेरी बच्ची लो पानी पी लो। मासूमियत से सकीना ने पूछा, फूफी हुर की बीवी ठंडा पानी लाई तो तुमने पानी पी लिया? सैयदा ज़ैनब ने कहा, नहीं बेटे, नाना की हदीस है ना कि जब खाने पीने की चीज आए तो पहले छोटों को पिलाया करो, खिलाया करो, फिर तुम खाया पिया करो। बेटी इस पूरे काफले में सबसे छोटी तुम हो बेटी, लो पहले तुम पियो फिर हम अपना देख लेंगे। जैसे ही सकीना ने हदीस सुनी, कटोरा हाथ में लेकर खड़ी हो गई और नन्हे नन्हे कदम से दौड़ती हुई लाशों की तरफ चली। ज़ैनब ने पुकारा, सकीना, ओ मेरी बेटी सकीना, सकीना कहाँ जाती हो बेटी, इधर आओ। पलट करके कहा, फूफी इतनी जल्दी भूल गई नाना की सुन्नत, अभी तो तुमने कहा कि जब खाने पीने की चीज मिले तो नाना का हुक्म है कि पहले छोटों को पिलाओ फिर तुम खाना पीना। आप कहती हैं कि पूरे काफले में सबसे छोटी मैं हूँ। नहीं फूफी, मैं पूरे काफले में छोटी नहीं हूँ, मुझसे छोटा तो मेरा भैया अली असगर है, मैं पहले उसे पानी पिलाऊंगी फिर मैं पानी पीऊंगी। बच्ची को पकड़कर सीने से लगाया, मेरी बेटी तेरा भैया असगर तो पानी पी चुका है। फिर रात काटे नहीं कटती थी, सुबह हुई तो कुछ तवक्को थी, अब मुसीबत कम होगी। 11 मुहर्रम की सुबह आई है, जालिम बीबियों के तरफ आए, जिन नाजुक हाथों को हुरा ने बहिश्त बोसा देती है। ज़ैनब के हाथों में रस्सी बांध दी गई, बीमार ज़ैनुल आबिदीन के गले में तोक डाल दिया गया, शहरबानों सब बीबियों को बांधा गया, बच्चों को बांधा गया और ऊंटों की नंगी पीठ पर उन्हें बिठाया गया। एक एक ऊंट पर 3-3 लोगों को बांधा गया, सकीना को बांध दिया गया। ये जुल्म की दास्तान है यजीदियों की। और उसके बाद जब ये काफला करबला से चला तो लाशें पड़ी हुई थी, कुचली हुई लाशों को देखकर सैयदा ज़ैनब ने कहा, नाना जान आपके दुरूद सलाम। हातिम ताई की बेटी को बगैर चादर के आपने देखा तो अपनी चादर उसके सर पे डाल दी और इन जालिमों ने आपकी बेटियों की चादर छीन ली। आपका हुसैन बगैर कफन के पड़ा है, आपके हुसैन को कफन तक मैसर नहीं, हुसैन की औलाद को कफन तक मैसर नहीं। अल्लाह अकबर। फिर कहा, ओ यजीदियो तुम्हारी मेहमानी याद रहेगी, कूफा वालों तुम्हारी मेहमानी याद रहेगी। तुमने मेरे भाई को बुलाकर उसके साथ क्या सलूक किया, अपने बेगाने सब रो पड़े, काफिला चल पड़ा। शाम होते होते ये काफिला जो है वो कूफा की तरफ पहुंचा। तो चूंकि शाम हो गई थी, दारुल इमारत बंद हो चुका था, बाहरी पहाड़ के करीब काफिला रोक दिया गया। काफिला रोका गया, अजीब हालात थे। वैसे ही बंदे हैं, नमाज के लिए तक हाथ नहीं खोले, नमाज के लिए तक हाथ नहीं खोले, ऐसे ही बांध करके रखा। रात की आखिरी पहर ज़ैनब आहव फगा में थी, आए कर रही थी और कहा कि इन्होंने इस तरह लूटा। सुबह हुई, रात का मंजर तो ये है, खौली बिन यजीद के हाथ में इमाम हुसैन का सर दिया गया, सर बांट के अपने अपने घर ले गए। उसने अपनी बीवी को कहा तेरे लिए तोहफा लाया। उसने कहा क्या तोहफा है? कहा कि इतना लाया हूं कि तू माला माल हो जाएगी। कहा लाया क्या ये बता? कहा हुसैन का सर। कहा लानत है तुझ पे, आज के बाद मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी, आज के बाद मैं तुझ पे हराम हूं, मैं तुझसे कोई बात नहीं करूंगी। नवासे रसूल का सर काट के लाया। रात ना होती तो घर से निकल जाती और उसके बाद कहा उससे बात नहीं करना। जब वो सोते पड़ा रह गया तो वो बीबी का बयान है, वो अहले बैत की मुहिब थी कि रात भर मैंने सब्ज परिंदे हुसैन के सर के इर्द गिर्द मंडलाते देखे और नूर ही नूर देखा। बल्कि अल्लामा अबू इसहाक अस्फराइनी रहमतुल्लाहि ताला अलैह नूरुल ऐन फी मशहद हुसैन में लिखते हैं कि वो बीबी कहती है कि मैंने देखा कि कुछ लोग आए हैं, कुछ औरतें कुछ मर्द हैं, इतने नूरानी चेहरे हैं और वो बारी बारी से हुसैन की पेशानी को चूमते हैं, बोसा देते हैं। जब मैं करीब गई मेरे तो भाग जगे, सरे हुसैन क्या आया मेरे घर में ये नूरानी चेहरे वाले। मैंने पूछा कौन हो तुम? तो जो बहुत नूरानी चेहरे वाले सफीद रेश थे उन्होंने कहा मेरा नाम इब्राहिम है, मैं अल्लाह का खलील इब्राहिम अलैहिस्सलाम हूँ, हुसैन की पेशानी चूमने आया हूँ। और उसके बाद दूसरे ने कहा मैं आदम हूँ। और जब मैंने बीवियों से कहा
ایک نے کہا میں حوا ہوں, ایک نے کہا میں مریم ہوں, ایک نے کہا کہ میں فاطمہ بنت محمد ہوں. اللہ اکبر. میں نے یہ منظر دیکھا تو تھرا گئی. پھر میں نے زلفیں صاف کی, چہرہ صاف کیا, اور یہ منظر میں رات بھر اس میں ڈوبی رہی. صبح ہوئی تو خولی پلید جو ہے وہ سر لے کر کے گیا. پورے کوفہ میں سر کو گھمایا گیا. کوفے والے چھت پر چڑھ کر سینہ پیٹ رہے تھے. ہم نہ تھے. وہ سینہ پیٹتے تھے, پلید روتے تھے, چلاتے تھے, چیختے تھے, اور کچھ لوگ مذاق بھی اڑاتے تھے, کچھ لوگ ہنستے بھی تھے. سیدہ زینب نے فرمایا کوفہ والوں, مہمان بنا کے بلایا, پیاسا رکھا, دھوکہ دیا, خطوط لکھے, بے وفائی کی, یزید کی حمایتی ہو گئے. اب تم قیامت تک کے روتے پیٹتے رہو گے. خون حسین کا دھبا تمہارے دامنوں پر یوں لگا ہے, یہ کبھی ختم نہیں ہو سکے گا. اس کے بعد کوفہ کے دارالعمارت عبید اللہ ابن زیاد بدنہاد بانی فساد اس شیطان کے پاس رکھا گیا. حسین ابن علی کا سر تشت میں رکھا گیا تو وہ دیکھ کر کے ہنس کے کہتا تھا حسین تو کتنا خوبصورت ہے. دشمن کہتا ہے کتنا خوبصورت ہے, تیرے دانت کتنے حسین ہے. اور جب چھڑی لگائی دانتوں کو, صحابی رسول زید ابن ارقم موجود تھے. کہا او ابن مرجانہ, او پلید, چھڑی ہٹا. میں نے انہی ہونٹوں کو حضور کو بوسہ لیتے ہوئے دیکھا ہے, انہی ہونٹوں کو چومتے ہوئے دیکھا ہے. تو چھڑی لگاتا ہے, بے ادبی کرتا ہے. اس نے کہا اگر اے بڈھے تو سٹ نہ گیا ہوتا, سٹیا نہ گیا ہوتا, میں تجھے قتل کرا دیتا. تو کہا میرے بوڑھے ہونے کا اتنا احساس ہے, کہا تو نبی کا صحابی ہے, کہا صحابی کی نسبت کا اتنا احساس ہے, تو نے نواز رسول کو قتل کیا. اٹھ کے کھڑے ہو گئے, کہا لوگوں تم نے حسین ابن علی پہ ظلم کر کے بہت بڑی غلطی کی. اب تمہارا ہر شریف ذلیل کیا جائے گا, قتل کیا جائے گا, اور ہر ذلیل اور پلید کو عہدے دیے جائیں گے. یہ کہہ کر ڈانٹتے ہوئے آپ باہر نکلے. اس کے بعد ابن زیاد جناب زینب کی طرف مخاطب ہوا, کہا دیکھا تیرے بھائی کا انجام کیا ہوا. اس وقت سیدہ زینب امام زین العابدین نے بہت خبر لی اس پلید کی اور اس کو لاجواب کر دیا. اس کے بعد المختصر اختتام کی طرف آتے ہوئے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اس نے وہ سارے کٹے ہوئے سر جو ہے وہ معاذ اللہ یزید شیطان کی طرف بھیج دیا. یزید نے پہل تو ان سروں کو دیکھا, حالانکہ وہاں بہت دھوم دھام تھی, بڑے تماشے تھے, بڑی خوشیوں کا ماحول تھا, بڑا عجیب ماحول تھا وہاں کا. میں اس کو کسی اور دن کے لیے چھوڑتا ہوں, لیکن بس اتنا کہ جس وقت سیدہ زینب نے دمشق کے اس دارالعمارت میں خطبہ دیا ہے, وہ خطبہ بڑا تاریخی ہے. وہ خطبے پر ایک دن گفتگو ہونی چاہیے. انشاءاللہ آپ زندگی کے لیے دعا کریں, اللہ آپ کو بھی عمر دے, مجھے بھی دے, اور انشاءاللہ سیدہ زینب کا خطبہ جو دربار یزید میں آپ نے دیا ہے اس کا اثر یہ ہوا کہ یزید کے لوگ مخالف ہو گئے, اہل شام یزید کے مخالف ہو گئے. یزید گھبرایا, اور گھبرانے کے بعد اس نے فیصلہ کیا کہ جلدی سے ان سروں کو اور ان قیدیوں کو, اسیروں کو واپس کر دینا چاہیے. تو اس نے یہ کیا کہ ان سروں کو کہا کافور لگاؤ, خوشبو لگاؤ اور ان کو دے دو. حالانکہ وہ بڑا خوش تھا, اس نے بڑی گالیاں بھی دی, ساری چیزیں تھی, لیکن جب ڈرا کہ اب چونکہ آل نبی کی عوام محب تو ہوتی ہے کہ بھئی یہ بہت عجیب معاملہ ہو جائے گا, تو وہ ڈر کے مارے اس نے سوچا کہ اب جلدی سے ان کو روانہ کر دیا جائے, ورنہ ان مظلوموں کو دیکھ کر کے لوگ بہت بڑا مسئلہ کھڑا کر دیں گے. تو صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر کی قیادت میں وہ قافلہ روانہ کیا گیا سروں کو لے کر. بعض روایتیں یوں ملتی ہیں کہ وہ سر دمشق میں ہی دفن کر دیے گئے. آج بھی وہاں مزارات ہیں, وہاں میں نے حاضری دی ہے. لیکن جو دوسری معتبر روایت ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام زین العابدین کے پاس نعمان بن بشیر صحابی رسول آئے, میں تمہارا غلام اہل بیت کا محب ہوں, جہاں لے چلنے کے لیے کہو گے چلوں گا, جہاں قیام کرنے کے لیے کرو گے کروں گا, جہاں پڑاؤ ڈالنے کے لیے کہو گے کروں گا, بس بتائیں کہ حکم کیا ہے. تو آپ نے فرمایا اپنی پھوپھی کے مشورے سے ہمیں پہلے کربلا لے کر کے چلو. پھر اس طرح وہ 20 صفر المظفر کو جو ہے وہ کربلا پہنچے, یعنی جس دن امام حسین کی شہادت کو 40 دن مکمل ہوئے تھے, کربلا پہنچے. اور وہاں پہنچنے کے بعد ان لوگوں نے کربلا شریف کے اندر ان سروں کو دفن کیا. اور چونکہ جو پہلے لاشیں چونکہ وہیں رکھی ہوئی تھی, عبید اللہ ابن زیاد کے جو آدمی تھے, ابن سعد اور شمر وغیرہ کربلا میں, انہوں نے تو اپنے مقتولوں کی جنازہ پڑھی اور دفن کیا, لیکن ان شہداء کو یوں ہی چھوڑ دیا. تو پاس کے قریب میں نہر فرات کے پاس ایک چھوٹا سا دیہات ہے جس کو گازریہ کہا جاتا ہے, وہ وہاں آج بھی وہ دیہات موجود ہیں. تو وہ لوگ آئے اور آنے کے بعد انہوں نے نماز جنازہ پڑھی, اور وہ محبان تھے اہل بیت کے, تو نشاندہی کر کے اکثر شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا. حبیب ابن مظاہر کو, حضرت عباس کو, حضرت علی اکبر کو, حضرت قاسم کو, امام حسین کو الگ الگ جو ہے وہ دفن کیا. باقی سارے شہداء کو ایک ساتھ دفن کیا اور اس پہ نشاندہی کی ان لوگوں نے. اور پھر اس کے بعد اللہ اکبر, سروں کو تو جو جہاں جس کا جسم تھا وہیں پر وہ سر دفن کیے گئے. اور ایک روایت یہ ہے جو بیان کی جاتی ہے کہ وہ سر مدینہ طیبہ لے کر جائے گئے, واللہ عالم ورسولہ عالم. لیکن جب کربلا سے یہ قافلہ سوئے حرم روانہ ہوا تو بیبیاں اب مدینہ طیبہ جا رہی ہے, لٹا ہوا قافلہ, سیدوں کا تاراج قافلہ, لٹا پٹا قافلہ. جب مدینے سے نکلے تھے گود میں علی اصغر تھا, بازو میں علی اکبر, دائیں امام قاسم, آگے عباس, پیچھے حسین, ایسے ہرا بھرا یہ قافلہ نکلا تھا. لیکن جب واپس لوٹ رہے ہیں اب چند بیبیوں کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے, بچوں کے سوا کچھ نہیں ہے. اور پھر جیسے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب آیا, دل ہلا دینے والی داستان ہے. جیسے یہ قافلہ مدینہ طیبہ کے قریب آیا ہے, جیسے جیسے کھجور کے درخت نظر آتے ہیں, مدینے کی پہاڑیاں نظر آتی ہے, صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا چلا جاتا ہے, بیویوں کی ہچکی نکلتی چلی جاتی ہے, روتی چلی جاتی ہے. حضرت زین العابدین کو غم یاد آتے چلے جاتے ہیں. کسی اونٹنی سوار نے پہلے پہنچ کر اہل مدینہ کو اطلاع دی کہ کربلا سے لٹا پٹا قافلہ مدینہ طیبہ آ رہا ہے. حضرت محمد ابن حنفیہ بیمار تھے پھر بھی گھر سے باہر آ گئے. حضرت عبداللہ ابن جعفر طیار سیدہ زینب کے شوہر اہل مدینہ سے باہر نکل آئے استقبال کے لیے. سغرا
जनाब सुगरा का हाल अजीब था, पछाड़े खा खा करके गिरती थी। हाय लुटा काफिला। जब ये काफिला मदीना तैयबा में दाखिल हुआ, रोते रोते लोगों की चीख निकल गई। मौरखीन लिखते हैं उस दिन सबसे ज्यादा रोया गया था जिस दिन हुजूर का विसाल हुआ था, और उस दिन मदीना तैयबा में सबसे ज्यादा रोया गया जिस दिन वो करबला से लुटा हुआ काफिला मदीना तैयबा में आया। हाल ये था कि जिन्नातों के रोने की आवाज आती थी, हाल ये था पहाड़ों से रोने की आवाज आती थी, और शहादत हुसैन का तो हाल ये था, शहादत के बाद 40 दिन तक जहां से पत्थर उठाया जाता वहां से ताजा खून निकलता। ये बातें तो आप पिछली नशिस्तों में सुन चुके हैं, पिछले सालों में ये हाल था। लेकिन जब मदीनतुर रसूल में ये काफिला पहुंचा तो सैयदा ज़ैनब कुबरा ने कहा हम सबसे पहले रसूलुल्लाह की बारगाह में जाएंगे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा हम हुजरे रसूल में जाकर सबसे पहले अमानत हुसैन पहुंचाएंगे। और उसके बाद जब वो हुजरे रसूल में दाखिल हुए हैं, सिर्फ घर के लोग थे, सैयदा ज़ैनब ने नाना का मजार का पैंती पकड़ा और कहा कि नाना आपके हुसैन का आखिरी सलाम दे दो। फिर सैयदा ज़ैनब ने इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने जो दास्तान सुनाई, हिम्मत नहीं है लेकिन बस इतना कहा जाता है कि ज़ैनुल आबिदीन कहते थे नाना आपके मासूम असगर को भी कत्ल किया गया, अली अकबर को खाको खून में तड़पाया गया, आपके हुसैन के लाश पे घोड़े दौड़ाए गए, हुसैन का सर नेज़े पे उठाया गया, आपकी बेटियों की चादरें छीनी गई, आपकी सकीना के चेहरे पे तमाचे मारे गए। जिस वक्त ये बातें कही जा रही थी, खुदा जाने कब्र रसूल पर क्या लर्ज़ा तारी हुआ होगा और रसूलुल्लाह ने कैसे उनके आंसुओं को खुश्क किया होगा। ये तो मेरे आका जानते हैं, घर की बात घर वाले जानते हैं।